Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। बहराम गाजी मेरे साथ है एज यूजुअल। Yes, sir. और हम आ चुके हैं आप लोगों के साथ फिर से Yeah. बैक टू बैक टू बैक टू बैक आए जा रहे हैं आप लोगों की स्क्रीनों पे। बात करने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज का प्रीव्यू। Absolutely. In the first half, or well, the first 75% of this podcast will be Pakistan versus New Zealand ODI series preview. 90%। 90%. फिर एंड में यार थोड़ी सी PSL की न्यूज है, हमें समझ नहीं आ रही थी फिट कहाँ करें लिटरली हाँ क्योंकि इस पे अलहदा शो तो हो नहीं सकता, इतनी सी न्यूज है। बहुत कम बात करने वाली चीजें हैं, बट देन अगेन इट्स इंपॉर्टेंट स्टफ एंड व्हेन द PSL comes near we want to focus just on the teams, right? or playing 11s or strategies और वो सारी चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, so that's why we've packaged that bit into the same podcast. बाकी बस यार a very weird day for me सादी। अच्छा जी। सैरी पे सोया हूँ आहा 4:30 4:45 whatever, सही है। एक मूवी देखी मैंने निकोल किडमन की उससे पहले called Baby Girl। Wait for Ramzan to end before you watch that one। Why did you watch it? It was recommended to me by Aliza, who will be returning today from Lahore, so I'm excited to get out of here and go meet my wife। तो वो थोड़ी twisted सी थी, बस यार रमजान के बाद देखना। रमजान के बाद देखेंगे। सुबह उठा हूँ मैं नेचुरली 4 घंटे की नींद के बाद, वाह, गया हूँ मैं बार्बर शॉप 10:30 बजे। ये जो उसने लट निकाली हुई है ना, काम खराब किया उसने, बहुत ज्यादा बाल काट दिए, सारे मेरे पीछे पड़े थे कि ईद आ रही है बाल काटो। नहीं ये लट पे जो है ना उसने थोड़ा ज्यादा काम कर ही दिया, काम थोड़ा खराब हो गया और साथ बियर्ड ट्रिम मसाज, मसाज भी चल गए हैं। ट्रीट योरसेल्फ काइंड ऑफ सेल्फ केयर डे। वाह। एंड देन आई स्लेप्ट अगेन एट 4। फिर मैं इफ्तारी से पहले उठा और बस अब तेरे सामने इफ्तारी के बाद। So yeah, let's get through this. चलो। Yeah. Day in the life of Behram Qazi. Yes sir. अच्छा जी। So let's start with Pakistan squad then. Obviously. मैं बोलता हूँ नाम, तुम रिएक्शन चलो आज इस तरह कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। Yeah, Mohammed is one। अच्छा। Yeah. अच्छा जी। सलमान अली आगा। वाइस कप्तान। Yeah, cousin Sal, vice skipper। Abdullah Shafiq। He's back. Welcome back, Abdullah Shafiq। अबरार अहमद। बनता था। आकिफ जावेद। शुक्र है। इंटरेस्टिंग राइट। लेकिन T20s में भी हो जाता तो बेहतर हो जाता। ज्यादा बल्कि बेहतर होता कि T20s ही खेलता, बट चलो ही खेलता नहीं, लेकिन भी हो जाता तो ज्यादा और अच्छा हो जाता। Agreed with B and I'm looking forward to watching him bowl। Baba Azam। Bobsy the King। Yes। Yeah, bro। Rana Fahum Ashraf। The sigh of Phool Nagar or sigh from Phool Nagar। Imamul Haq। इसकी आवाज निकाल दो ना। अच्छा, खुशदिल शाह। Happy heart। Yes। Then we've got Muhammad Ali, the Yeah. Daisy। मोहम्मद वैज जूनियर। शुक्र वापस आया। तुम बड़े खुश हो गए शुक्र वापस आया। मोहम्मद इरफान खान नियाजी। शुक्र है ओडीआई स्क्वाड में भी है। या नाजीम शार। I was surprised not to see him in the T20 squad, लेकिन deservedly not in the T20 squad. I suppose so, and you know rest might also help Naseem Shah because हम चाह रहे हैं कि वो पीक फिटनेस पे आकर वापस पीक नसीम वाली बॉलिंग कराने लग जाए। पीक फिटनेस हो ही ना जाए। And then you've got Sufi Mac। Sufi Mac, wow। Yeah, and Thoyeb Tahir। Haris Rauf has been drafted in। ठीक है। And then you've got Usman Khan to wrap things up as Rizwan's concussion sub। गेम तो नहीं मिल रही इधर भी। गेम तो सवाल ही पैदा नहीं होती मिले, इसलिए मैंने कहा कि he is literally in the squad as Rizwan's concussion sub। So thoughts की जहाँ तक बात की जाए, I want to start and I know you will second my opinion over here। अच्छा चलो। नहीं मुझे पता है क्योंकि तुम बहुत बड़े फैन हो इस बंदे के। This and we mentioned this you know probably a month back or whatever, whenever this squad was announced initially। Yeah, this was a perfect opportunity for Pakistan to blood an upcoming and budding opening bat in Hasibullah Khan। Not only Hasibullah Khan, लेकिन हाँ I do agree। I would have preferred him over Imam for sure। Yes, and you know he's young Saadi, he's played 50 list A games, he's averaged 51.13 with the bat। Beautiful in 50 list A games। उसका बेस्ट फॉर्मेट सारे कहते हैं T20 में लाओ। I still think his best format is ODI, उसके बाद I think first class and then T20s। Agreed, man। Absolutely agreed, and the numbers are there to prove it as well। Also, had you drafted Hasib in for this squad, you wouldn't have to select Usman Khan as Rizwan's concussion sub। ठीक है, और आप इधर उधर मौका भी दे सकते थे हसीब को। हसीबुल्लाह बाय द वे इंजरी से फुली रिकवर हो गया था काफी अर्सा पहले। उसकी स्प्लिट वेबिंग थी इन वन ऑफ हिज हैंड्स, वो रिकवर हो चुकी है, तो ये ना कहना कि ही इज इंजर्ड। या प्लस यू नो गोइंग इनटू द फ्यूचर, आई डोंट नो इंजर्ड ही ना हो वैसे क्या पता अब ना इंजर्ड हो गया वो स्प्लिट वेबिंग वाली। तो लेट अस नो इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम एन इंजरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी कुडंट वो वाली इंजरी रिकवर हो गई थी। स्प्लिट वेबिंग तो रिकवर डेफिनेटली हो गई है। बाकी यार ऑब्वियसली अब लुकिंग एट द स्क्वाड, आई थिंक ऑल 3 games Imam and Abdullah open।
राइट? यही तो मसला है, और कोई ओपनर है नहीं। मैं जरा साइलेंट कर लूँ। हाँ, साइलेंट बट वायलेंट। हाँ नहीं यार, और है ही नहीं कोई ऑप्शन। कौन है ओपन करने नहीं के लिए? है ऑप्शन यार, उस्मान खान तो उस्मान खेलेगा खान नहीं। है। और कुछ लोग हिपस्टर मूव्स में मुब्तला होके, ओह डैम बड़ी उर्दू निकल आई है, ओह कहते हैं कि तैयब ताहिर को करा दो ओपन, क्योंकि ही इज डन दैट इन लिस्ट ए। आई डोंट थिंक दे विल बी डूइंग दैट। चेंजेस तो मुश्किल ही है करें ये, अनलेस कोई फेल हो जाएगा, वरना तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, मुझे लगता है कि कोई एक आधा ही चेंज आपको देखने को मिलेगा पूरी ओडीआई सीरीज वो में। भी बाय डिजाइन नहीं होगा, वो होगा मजबूरी में। हाँ, नहीं कि क्या यार पता, नहीं यार, ये अच्छी बॉलिंग नहीं करा रही। क्या पता फास्ट बॉलर्स रोटेट कर लें गलती से। नहीं नहीं करेंगे। ये सिर्फ तब करेंगे जब कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करे। अच्छा, मोहम्मद अली फॉर एग्जांपल पड़ गई उसे, तो ले आओ यार वसीम जूनियर को गेम दे दो, ऐसा होगा। एग्जांपल दे। नहीं, सही कह रहे हो मेरे ख्याल से। इफ द T20I series has shown us anything, is that Pakistan has remained this or continues to be this extremely hesitant side when it comes to making changes to playing 11s. यार मुझे एक बात पता है कोई, मैं हमेशा उस बंदे की बात करता हूँ, अच्छा, अरफात मिन्हाज किधर है यार? या मतलब अगर आपने फिर से दोनों राणा फहूम और खुशदिल को सेलेक्ट करना था, एंड आई एम नॉट throwing shade at Khushdil Shah because he was Pakistan's best batter in the Champions Trophy, but yaar, again, premier opportunity or prime opportunity to blood someone like Arafat. और फहीम अशरफ की जगह कोई और ले जाओ यार। Literally. आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, क्या बकवास। नहीं समझ आती यार कभी कभार। लुक, क्यों? एंड ठीक है यार, वो भी क्रिकेटर्स है, उनकी भी कुछ एम्बिशंस होती हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक टू देम, नॉट ट्राइंग टू विलिफाई एनीवन। आई होप कि जो भी पाकिस्तान के लिए खेले वो अच्छा खेले। एब्सोल्युटली, लेकिन अभी तक नहीं किया ना ये दोनों अब थोड़े बूढ़े भी हो गए, ठीक है, इनका टाइम थोड़ा जाता जा रहा है, एंड गाइज लाइक अब्बास अफरीदी एंड अरफात मिन्हास एंड मे बी थ्रो इन अ मेहरान मुमताज इन देयर। मेहरान मुमताज है, आमिर जमाल है यार। आमिर ये जमाल है। सीरीज बहुत अच्छी हो सकती थी उसके लिए। आमिर जमाल रियली कुड हैव बीन दैट गाय अहेड ऑफ फहीम थोड़ा सा अशरफ। ना उसने इन्हें तंग कर दिया। राणा फहूम जो आए हैं और आमिर जमाल नहीं आए, यू कुड पोटेंशियली कनेक्ट द डॉट्स। आई एम नॉट सेइंग कि ये हुआ है, बट it's not something that can be entirely ruled out either. मुझे शक है आमिर जमाल जो है ना, इनके थोड़े बटन्स जो हैं पुश कर आउट ऑफ फेवर हो गया है कुछ अपनी स्क्रिबलिंग की वजह से। ये क्या बातें हैं यार, टोपी के ऊपर क्या बातें हैं यार। बस अब ये दिस इज पाकिस्तान सादी, और कुछ कहा नहीं जा सकता इसके ऊपर। हमें भी अपना भी सोचना है। हाँ, इसीलिए तो हम थोड़ा इजी हो गए, स्क्रिबलिंग की बातें कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं। अच्छा खैर, उसके अलावा यार ये 3-4 प्लेयर्स तो हमने नाम लिए, कुछ प्लेयर्स थे स्क्वाड में जो निकल गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बगैर फीचर किए। मोहम्मद हसनैन is on the top of that list for me because I actually genuinely felt Saadi that this could have been his series. मतलब एटलीस्ट आपको पता चल जाता एक रन इन देके उसे, बिल्कुल। कंसिस्टेंट रन इन देके कि कर सकता है वो या नहीं कर सकता। क्योंकि फिलहाल जब से वो वापस आया ना, चैंपियंस कप में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर सका था वो जितना भी थोड़ा मौका मिला है उसे। He has been hot and cold in whatever opportunities have been presented to him. Throughout his career. हाँ, throughout his career भी, but इस दफा भी I remember there were a few spells in South Africa where he did well. Yeah. ठीक है, and then of course in the prior series he was horrendous. Let's make no mistake when we say that. But यार, tell me how someone like Muhammad Ali, who has a very bang average list A record, देख रहे थे हम उस दिन, right? His average is what, 29-30, 28 at best, इस तरह कुछ है. There's nothing spectacular over there, and he's gotten his ass handed to him in the T20Is as well. तो मुझे समझाओ यार, वो बंदा 32-33 का है, मोहम्मद अली. Mohammad Hasnain is still quite young, और सही है यार, maybe he hasn't developed the way Pakistan wanted him to, but this could have been a series in which you say, Hasnain, तू तीनों मैच खेल रहा है और हमें पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हो तुम। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आगे परसिस्ट करना है कि नहीं करना। आप वहां तक प्लेयर को लाते हो इन पाकिस्तान कि अब पता चलेगा, और फिर वो सैक हो जाते हैं प्लेयर्स। एंड दिस गाय मोहम्मद हसनैन डिडंट इवन फीचर इन द चैंपियंस ट्रॉफी, सो इट्स अ बिट हार्श। इट इज हार्श बिकॉज़ यू थॉट ही वाज गुड इनफ फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, एंड इन अ टूर्नामेंट वेयर ही डिडंट इवन प्ले, he doesn't make it to the next squad. Similarly, कामरान गुलाम से तो हेवी ज्यादती हुई है। कामी जी बेचारों ने, कामी जी के साथ वैसे सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है, सबसे ज्यादा शायद कामी जी के साथ ज्यादती हुई है। Because look, I'm not saying that Kami ji is the solution to all of Pakistan's problems, but in that ODI in South Africa where he smashed 60 odd and 30 something balls, you were shown a glimpse of what could potentially be. ठीक है, if things go right, Kami ji could have perfectly slotted into that number 5, number 6 role, और वो थोड़े सी buffer overs भी दे सकते हैं, जो कि by the way they think Khushdil is an all rounder, but Kami ji isn't.
कामिची का बहुत बेहतर रिकॉर्ड He है. has a better record in list A cricket than Khushdil Shah. Yeah. Just by the way, right? I'm not saying कि वो ऑलराउंडर है कामी जी, मगर मैं सिर्फ एक पॉइंट मेक कर रहा हूँ. और अभी तो बोला ना कि वो फील्डिंग पे निकाल दी उसने. यार ये तो मुझे समझ ही नहीं ये तो वही मोहम्मद हारिस को जो बेंच किया था ना पुराने जमाने में, ये तो मुझे समझ ही नहीं. सेम वो शिट कर दी. यार देखो, अगर आप कोई चेंजेस करे उसके पीछे लॉजिक है ना, तो मुझे समझ आती है. मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, कुछ सोच के, सही सोचा गलत सोचा, लेकिन कुछ सोचा उसके बेसिस पे की. अब अगला ये इलॉजिकल बात है यार. सादी कामी जी टेस्ट टीम में है, वहां पे फील्डिंग मसला नहीं है, जहाँ पे 5 दिन खेलना और 90 ओवर एक दिन में होते हैं. उसकी एक्सप्लेनेशन भी ये थी ना कि वो सेशंस में डिवाइडेड होता है, तो 2 घंटे बाद ब्रेक आ जाती है. अल्लाह, तो इधर 3 घंटे बाद ब्रेक आ जाती है. बस 3 घंटे करनी है फील्डिंग. Exactly. 3.5 घंटे चलो tops. And honestly, I don't even get the rationale because Kami ji is a live wire in the field. He is. I like him in the field. ठीक है, कभी कभार एरर प्रोन हो जाता है, मगर यार वो कौन नहीं हो रहा है इस टीम में. सही है. अब खुशदिल शाह तो हो रहा है. Bro, I know it just took a very good catch in the deep recently, but खुशदिल शाह makes a lot of errors in the नेशनल field. टीम में तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं. उसके अलावा अभी जो ये चल रहा है नेशनल T20 कप, हर 10-15-20 मिनट बाद एक कैच ड्रॉप हो रहा हो. तो ये तो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स है मुल्क में. So अब आपने कामी जी को साइडलाइन कर दिया without playing him at all in the Champions Trophy, where he had a good case to feature honestly. हाँ. सही है, ये सब कुछ आपने किया है. एंड बिफोर दैट, आफ्टर ही हैड गिवन यू दैट ग्लिम्स इन साउथ अफ्रीका, वेयर यू नो एक बंदा सोचता है कि चलो यार, वी डोंट नो इफ दिस इज रिपीटेबल, वी डोंट नो इफ दिस वाज अ वन ऑफ और ही कैन डू इट अगेन, बट ही इज शोन यू समथिंग. दैट इज द सॉर्ट ऑफ मोमेंट व्हेयर यू टेक अ पंट ऑन समवन. उसको आपने पहले उसकी पोजीशन चेंज की, फर्स्ट ड्रॉप पे लाए, फिर उसको कट दिया, और फिर उसको टीम से कट दिया बगैर चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाए हुए, ये हमें बोल के कि वो फील्डिंग उसका मसला है. यार मुझे जस्ट मेक इट मेक सेंस फॉर मी सादी. यार मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, खुशदिल साहब से बेहतर फील्डर है कामी. हाँ है, शर्त लगाने को तैयार. शर्त क्या? आई मीन पाउंड फॉर पाउंड ही इज अ बेटर फील्डर. अगर आप ये रीजनिंग दे देना कि खुशदिल फॉर्म में है और हमने इसके साथ स्टिक करना है, Exactly. मुझे समझ आ जाती. ये क्या रीजन है यार? और दूसरी बात ये कि we all know that Khushdil Shah is in this team as an all-rounder. That's how you're viewing him, which is something that I disagree with. He's taken 4 ODI wickets at 83 apiece. That is not an all-rounder, Sadi. सही है? Nowhere near an all-rounder. और वो खेलेगा, हर मैच खेलेगा all-rounder की पोजीशन में, और आप फिर से 4 बॉलर्स के साथ जा रहे होगे. Now, maybe क्योंकि ये ओशियानिया में है, so रिजवान की कप्तानी कभी कभार इस तरह की कंडीशंस में ये होती है कि यार 40 ओवरों में ही मुका दूंगा. अगर ना मुका सके बॉलर्स को पड़ी हुई, क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर 5th बॉलर तो बहुत बड़ा मसला बन गया. लेफ्टी नहीं लगे हुए तो सलमान अली आगा के भी ओवर्स नहीं निकाल सकते. सो देन यू विल हैव टू बोल अ लॉट ऑफ खुशदिल शाह, एंड इवन इफ ही डजंट गो फॉर रन्स, ही विल नॉट गेट यू अ विकेट, एंड दिस इज पुअर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. इट इज पुअर. एग्जैक्टली वही वाली बात है सादी की. यहाँ अराफात मिनास होता, कहते यार अराफात तूने ना 8 ओवर कराने मैच में, ये डायरेक्टिव है तुम्हें. सही है, लेट्स सी हाउ इट गोस, एंड दैट्स योर जॉब. लेट्स सी हाउ इट गोस. आपको पता ही नहीं है. आप मेहरान मुमताज ले लो यार. अराफात क्या 24-25 साल का हो गया? ऐसा ही होगा. चेक कर लो बेशक. पाकिस्तान हैव लिटरली स्लेप्ट ऑन द किड. ही इज प्रोडिजियस, ठीक है, प्रॉपर प्रोडिजी है वो, और हर अपने एज लेवल ग्रुप से लेकर अब जो डोमेस्टिक भी खेल रहा है, ही इज बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल. अब भी नेशनल T20 कप में अच्छी परफॉर्मेंस है. एक इसने, बल्कि मैंने इसका छक्का देखा था इनसाइड आउट ओवर कवर्स, sweet as. He's 20 years. अच्छा, he's 20 years. Thank God he's only 20. पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि इतना टाइम हो गया कि 24 का हो गया. हम पता नहीं कब से बातें कर रहे हैं. Yeah, I think that we've hyped up Arafat consistently for a long period of time, and he's deserved it because he's someone who could be nurtured into a genuine all-rounder. And you don't have a lot of those. I feel वो वाली capability मेहरान मुमताज में भी है. थोड़ा सा बैट वो अराफात से थोड़ा सा कम करता है, लेकिन बॉलर कमाल है. He can develop into something. अभी नेशनल T20 कप में fastest 50 मेहरान मुमताज की है. And मेहरान मुमताज was impressive in the PSL. I know T20s है वो ODIs फर्क होते हैं, but I like him as a bowler. लेकिन अगर आप खुशदिल शाह को BPL और T20 की परफॉर्मेंसेस पे लेके आ रहे हो एज एन ऑलराउंडर फॉर वन डे क्रिकेट, तो फिर तो नहीं मैटर करती ना. अच्छा याद होता ना सादी के ओ यार, अनफॉर्चुनेटली खुशदिल शाह is an attacking option and those guys are defensive bowlers. He's not. he's a worse defensive bowler. मेहरान मुमताज इन तीनों में से मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंसाइसिव है. हो सकता है इंसाइसिव सबसे ज्यादा इन तीनों में से. अराफात मिनहास has his, तो ये नहीं कह रहे हम कि he's perfect. अराफात will give you depth. ये नहीं कह रहे कि हम कि he's perfect. उसमें है, he lacks some qualities in his bowling as well, in his batting as well. और अभी छोटा भी है, लेकिन उसकी सीलिंग बहुत ज्यादा हाई है यार. If you develop him, he can be something. आपको पता ही नहीं है सीलिंग कितनी हाई है. और दूसरी चीज ये है यार, आपके पास उस रोल के अंदर इस वक्त कौन से प्लेयर्स हैं. लिटरली यू आर रिजॉर्टिंग टू खुशदिल शाह. इसका मतलब है कि कोई बंदा रेडी नहीं है. तो यार वही वाली बात फिर से आ जाती है कि रेडी करने कब है लोग. Like this is honestly hysterical. यार अब 2 साल दूर है ODI वर्ल्ड कप. हाँ, खेलने आपने इतने हैं नहीं ODIs. अभी बांग्लादेश वाले ODIs भी आपने T20 कर दिए. और आपको पता है कि शादाब तो ODI नहीं खेल सकता.
ठीक है। T20 में नहीं खेल सकता, लेकिन बात यह है कि खेलने ही इतने से ओडियाई हैं, उसमें भी नहीं आपने लड़कों को चांस देना, तो किस तरह डेवलप करोगे? 27 में भी यही लड़के खेल रहे होंगे। यही बात कर रहे थे ना टीम मैनेजमेंट वाले कि अब आप ना आजकल की ओडीआई क्रिकेट में 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स साथ नहीं जा सकते। माना, तो क्या बंदा नहीं डेवलप करना कोई फिर जेन्युइन ऑलराउंडर? ऑलराउंडर्स की कमी है, किल्लत। When you have फहीम अशरफ एंड खुशदिल शाह as your all-rounders, तो all-rounders इस मुल्क में नहीं है, And क्योंकि why आपने डेवलप नहीं किए। Why waste this series where the result doesn't even matter as much and you can learn a few more things? वही वाली बात फिर से जो हम बक के थक गए हैं। अच्छा, बाय द वे कुछ लोग कह रहे थे वो हमारी स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रहे थे कि हम कह रहे हैं कि रिजल्ट्स डोंट मैटर, वो कहते हैं कि हर मैच आप जीतने के लिए खेलते हो, वो एक अलग बात है। आप खेलते जीतने के लिए, वो प्रोफेशनलिज्म है, बट ओवरऑल व्हेन यू लुक एट अ सीरीज, व्हाट कैन पाकिस्तान गेन आउट ऑफ विनिंग दिस ओडीआई सीरीज फॉर इंस्टेंस? हमारा कहने का मकसद ये है कि जीते तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, लेकिन हारे और कुछ सीख लिया तो वो भी अच्छी बात है। वो एग्जैक्टली लेकिन ये जीतते भी नहीं है, हारते हैं और कुछ सीखते भी नहीं है, मसला यहाँ पे आता है। You've got to be a bit brave at this point. Grow a pair. और बाकी जो हर टीम दुनिया की करती है, बायलैटरल्स में वो ब्लड करते हैं यंगस्टर्स और वो रैंडम कॉम्बिनेशंस ट्राई करते जाते हैं। youngster, but they experiment like crazy. Even when they win, they experiment. Okay, and then by the time an ICC tournament arrives, they know exactly what to do. And if Plan A fails, they know what Plan B, C, D, E, F looks like. अच्छा, एक और बात, सऊद शकील किधर गया? यार बड़ी अजीब सी चीज हुई है उसके साथ भी। Is Sa'ud Shakeel an ICC tournament specialist? Is that how they view him? Like that's so weird. पहले मिडिल ऑर्डर सॉर्ट नहीं हो रहा होता, जैसे ही वर्ल्ड कप आता है तो उसे ले आते हैं, या कोई टूर्नामेंट आता है। ये ओडीआई वर्ल्ड कप में हम देख चुके हैं कि वो कुछ समझ नहीं आ रही है, साउथ शकील को ले आते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में। अभी इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में देखा कुछ समझ नहीं आ रही, नहीं खेला हुआ वो, ले आओ उसको टीम में, और फिर उसी टूर्नामेंट के बाद बाय बाय साउथ शकील। एंड ही इवन स्कोर्ड लाइक प्रोबेबली पाकिस्तान्स बेस्ट नॉक ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, जो इंडिया के खिलाफ ऐसे 60 ऑड मारा था। You'd have to say that was Pakistan's best knock. I know खुशदिल batted well, मगर खुशदिल की जो innings थी ना, वो एक ऐसे टाइम पे आई थी, especially the New Zealand one, where let's be honest, the game was done. लेकिन मतलब साउथ शकील ने ही कुछ किया था। Yes. बस। तो यार अगर तो आपने फिर इन्वेस्ट करना है साउथ शकील में, तो ठीक तरह कर लो, वरना फिर क्या हम 2027 के वर्ल्ड कप के फौरन पहले देखेंगे कुछ समझ नहीं आ रही तो साउथ शकील डाल दो, क्योंकि टेस्ट मैचेस में चल रहा है। यही होगा, लग तो यही रहा है, इनका दिमाग तो इसी तरह चल रहा है। 2027 में फॉर एग्जांपल फखर जमान इंजर्ड हो जाता है, हाँ। साइम अयूब गॉड फॉरबिड ये दोनों इंजर्ड हो जाते हैं, फिर इमामुल हक खेल रहा होगा, क्या करोगे? सो कहाँ है हसीब, क्यों नहीं तैयार हुआ? एग्जैक्टली, तैयार ही तो करना होता है। फिर आप एंड में कहते हो कि एक्सपीरियंस नहीं है, देगा कौन एक्सपीरियंस? आप पूल बनाते हो ना, जो ये बार बार कहते हैं हमने टैलेंट पूल बढ़ाना है, अपना स्टॉक्स बढ़ाने हैं, तो भाई इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान और साइम अयूब आपके लास्ट टाइम भी यही थे, अभी भी यही है। यप, कहां से लाओगे नया प्लेयर? अभी तो आप एक ओपनर लेकर गए थे, राइट? और इस स्क्वाड में ओडीआई स्क्वाड में जहां पे न्यूजीलैंड में हो रही हैं गेम्स, राइट, एंड यू डोंट रियली नीड 2 स्पिनर्स, यू हैव गॉट 2 स्पिनर्स इन सूफी मैकन अब्रार, मगर चैंपियंस ट्रॉफी में आपको 1.5 स्पिनर लेकर जाना था, खुशदिल, सलमान अली आगा और अब्रार अहमद कंबाइंड के साथ। क्या इट जस्ट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, लॉजिक नहीं है ना, व्हिच इज व्हाई आई विल कंटिन्यू टू से यार व्हाट और हु विल काइंड ऑफ analyze the performance or evaluate the performance of the 5-man selection panel. Aqib Javed. This has been horrible. Aqib Javed, Azhar Ali, Asad Shafiq, Hassan Cheema and Aleem Dar. ठीक है? A data guy, a former umpire, 3 former players. Data guy मेरे लिहाज से तो होना चाहिए। होना चाहिए। उसकी अग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ उसकी इनपुट होनी चाहिए, ठीक है? शायद बेशक वो डिसीजन मेकर ना हो, इनपुट जरूर होनी चाहिए। लेकिन हसन चीमा क्या कर रहा है? क्या कर रही है? क्या उसकी इनपुट नहीं लेते या ये है ये? अब ये तो हमें नहीं पता ना, वी डोंट नो कि डज ही हैव अ प्रॉपर से एट द टेबल और इज ही जस्ट डूइंग अ शिट जॉब? आई डोंट नो व्हिच वन इट इज, ठीक है? क्योंकि मसला तो है क्लियरली। नहीं, और पता है, sorry Hassan Cheema, like I do respect you and everything, and I'm not trying to like throw you under the bus or something over here. मैं critical इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि literally कल की बात है, after our podcast जो T20 टीम का था, where Saad and I were kind of making different 11s, potential 11s for the future T20s में, Varun texted us. Varun gave us a shit ton of data और हमने आराम से टीम बना ली based on that data. This took us a grand total of 10 to 15 minutes. I'm not even joking. And we were like, यार फिर ये जिनकी नौकरी है उनसे क्यों नहीं हो रहा? और काफी ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट्स थे जो आपके डेटा ने। उस्मान खान फॉर एग्जांपल was the best batter versus spin, taking down spin in the middle overs, impact wise, overall yeah, in the world.
No, not in the world. It was in the PSL. It was PSL. It was sweetheart. PSL? Yes, it was PSL. फिर But क्या? it was the previous PSL and फिर और आपके क्या पास फायदा? क्या ही मतलब ज्यादा तो आपके पास एविडेंस है नहीं. Was it the PSL? My guy was Shadab Khan for that role, right? बात यहाँ से शुरू हुई उसका थी. impact wasn't up His to the impact mark. wasn't that good, but we know that he's done it in the past. But then again, he's done a lot of things in the past, जो कि आजकल उससे नहीं हो रही. So yeah, weirdly enough, Usman Khan was the best at taking down spin in the middle overs in the previous PSL. So we were like, okay. PSL ये तो मुझे disappoint कर दिया इसने. तो यही तो मैं बात कर रहा था कि PSL के spinners की भी तो देखो ना quality. Who's the best spinner in the PSL? Like, who is the best spinner in the PSL? तो I don't know. Osama Mir? Osama Mir, अबरार अहमद, अकील हुसैन. Yeah, और अकील हुसैन तो लेफ्टीज को सीम अप कराते हैं. वो भी वैसे उसने दिया हुआ था कुछ. मैं देख लेता हूँ ना. हाँ, उसने स्पिनर्स का भी दिया हुआ था और यही लोग थे ऊपर. राशिद को मत गिनो ना, क्योंकि राशिद तो रहा ही नहीं PSL में. इमाद was impact wise the best. उसके बाद उसामा मीर था. शुएब मलिक. If Shoaib Malik is making that list in the top 3 or 4 players, then you know you've got a problem. Osama Mir has 41 scabs as well. Yeah. मतलब वो पिछले कुछ सीजन्स को मिलाकर 539 balls, runs conceded 722, but 41 wickets. Yeah. So he pit railing in wicket. Attacking option है ना वो. मगर point is कि अगर तो शोएब मलिक आपके top 4 spinners में या 5 spinners में आ रहा है एक लीग के अंदर, एक franchise T20 लीग के अंदर, then you clearly can pinpoint that the quality of spin bowling in the league is dour. लेकिन एक और मसला है इसमें, जो अभी हमने 2 बॉलर्स की बात की है, मेहरान मुमताज, अरफात मिन्हास, दिस फैसल अकरम, सुफियान मुकीम ने भी कम मैचेस खेले. ये 4 पे हम सारे पाकिस्तान मुत्तफिक है कि ये 4 बड़े टैलेंटेड लड़के. होप्स तो हैं. अबरार को भी ऐड कर लो. 5 उम्मीद की जो किरण है ना, इन्फेंट वाली बेबी किरण, वो तो डेफिनेटली है. और सूफी मैक्स तो यार आपस की बात है. आई फील लाइक ही इज पाकिस्तान्स बेस्ट स्पिनर राइट नाउ. तो ये 5 हैं. इन्होंने मैचेस कम खेले तो शायद वो इम्पैक्ट वाइज इतना नहीं आ रहे होंगे आगे. अभी इस PSL के बाद शायद बेहतर हो जाए. मगर वो फिर पेशावर इज लोडेड वो बात. बट पेशावर इज लोडेड विद अ लॉट ऑफ स्पिनर्स राइट. दे फक्ड ओवर मेहरान. तकरीबन सारे तो वो ले गए. और हाँ, जॉर्ज लिंडा आ गया तो फिर मेहरान इज फक्ड ओवर. बट विल सेव दैट कन्वर्सेशन फॉर लेटर. बात ये हो रही थी कि लिटरली वरुण, a 23-year-old, Alva Condoniz. And Alva Condoniz, my boy, मेरी जान है वैसे तो वो, but he is super talented, right? इसमें कोई शक नहीं है. And if Jared has hired him for good areas, then we know that he knows his shit, right? Literally यार 10 से 15 मिनट में ना हमने अपनी first string team बना ली और we were like, यार इनसे नहीं हुआ ये काम. इनकी तो नौकरियां हैं, they get paid to do this. I'll be honest, बहुत बेहतर टीम थी. बेहतर टीम थी. अब निकालनी है तुमने. Might as well just go through it. क्योंकि कल हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी ना शो पे. T20 की है. हाँ. And the whole conversation started or stemmed from the fact कि वही शदाब को किस तरह बाहर करना है. ये दोनों बॉयज काफी कीन थे. Varun and Saad. And the fix for that was Usman Khan in the middle order to bash spin. That was their fix. So just keeping that in mind and how only one or the previous PSL's data was kind of looked at. Saim Ayub, Fakhar Zaman, Salman Ali Agha, Usman Khan, इरफान खान न्याजी, मोहम्मद आरिस. Yes, we thought के यार स्पिन के खिलाफ मसला होता है, पावर प्ले अगर दे नहीं सकते और फखर को अगर पावर प्ले में खिलाना है तो हारिस को पे फिनिशर ट्राई कर लो. अरफात मिन्हास, अब्बास अफरीदी, नसीम शाह, अबरार / Sufi Mac and Haris Rauf. See, that kind of checks out. It's not a bad team, is it now? और खास तौर पे अगर तो आपका एशिया में वर्ल्ड कप आ रहा है, so you could even have a situation in which Abrar and Sufi Mac both feature. And you can have Babar Azam in there as well अगर फखर नहीं चल रहा. Absolutely, Babar Azam can be there and thereabouts depending on what sort of form he's in the PSL particularly अभी जो आने वाला है. And I do feel कि Babar will want to prove a point, right? Because वो कोशिश तो कर रहा था पुराने पिछले 2 PSLs में. नहीं PSL में तो अच्छा ही खेलता, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था वो भी, और the quality of the players. And Babar does have a spin issue, right? He does struggle with spin more so recently. बहुत ज़्यादा ही कर रहा है. चलो आ जाते हैं फिर बाबर पे बात कर लेते हैं. Babar Azam, यार, Saadi, I dug up some numbers today, sweetheart. Wasn't good looking. It was a pretty poor looking statistic. So we all know that the last time Babar Azam scored an international ton, 100 in international cricket, was versus Nepal जब उसने 151 मारे थे in the Asia Cup in 2023. The exact date for that 100 was 30th August 2023. So अब मतलब 1.5 साल से ऊपर हो गया. सही है, officially 1.5 साल से अब ऊपर हो गया. और right at that moment हम उसी शायद जंक्चर पे हैं. बल्कि नहीं, एक साल 7 महीने हो गए ना. September, October, November, December और फिर अब मार्च में हो गया. 1 year 7 months since Babar Azam has scored 100 in international cricket. वो भी नेपाल के अगेंस्ट. ठीक है, वो भी नेपाल के अगेंस्ट था, मगर चलो तब फॉर्म लगी हुई थी, उससे पहले काफी 100s आ रहे थे. Now since then
or since that 100, Babar Azam across formats in international cricket has batted in 66 innings. And in 66 innings, his cumulative average across formats, once again, is 31.5. Yeah. Now, those are not Babar Azam numbers by any means. Those are replacement batter numbers. Not even replacement batter numbers, right? 16-50 है, 0 centuries, 3 ducks भी हैं उसके Yeah. अंदर. He struggled against spin. अच्छा. Both left arm spin and off spin as well. Michael Bracewell वाला मैचअप आने वाला है सीरीज के अंदर. He's basically Bracewell's bunny at this point. 7 dismissals already versus Bracewell. जिसमें अगर आपको याद हो, हमने पुराने जमाने में इसी जमाने में कुछ टाइम पहले हम लोगों ने ब्रेकडाउन भी किए थे 7 dismissals. Yeah. All 7 were on the front foot. So maybe he gets confused कि इस पे पीछे जाने के आगे आने. And then 2 of them were when he was charging down the track. Stump हुआ, सही है. So you have that info right there with you. और स्लो लेफ्ट आर्मर से खिलाफ हमें पता है बाबर स्ट्रगल करता है. So अब ब्रेसवेल के खिलाफ देखते हैं कैसे खेलता है. बट साथ ही 66 नॉक्स में 31.5 की एवरेज अक्रॉस फॉर्मेट्स इज रियली पुअर, रियली मीडियोकर. ठीक है. 16 50 चलो एक तरफ कर दो, 50 नॉक आ गए आपके पास और, राइट. 3 ducks, 4 not outs. थोड़े not outs भी एवरेज इन्फ्लेट करने हैं. He needs to buck the trend. That 100 is something that he needs, or that elusive 100 is something that he needs desperately at this point. और वो 100 ही काम अगर देगा सादी. 70 or 80 at this point won't do. He needs to get that monkey off of his back. बहुत baggage build हो गया उसके ऊपर. देखो मेरे लिहाज से I'll be completely honest, पूरे पाकिस्तान में अगर देखो ना, ODI क्रिकेट में बात कर रहा हूँ, बाबर आजम से बेहतर प्लेयर नहीं है फिलहाल आपके पास. हाँ, बैटिंग टैलेंट पे तो हम आज भी कहते हैं. ऑन टैलेंट ओनली. जो उसने पहले किया है वो आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते. जो अब उसने किया है वो भी आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते. सो वी आर नॉट सेइंग कि बाबर नेवर एक्सपीरियंस द पीक दैट ही डिड. इट वाज अनरियल. और ये भी आप याद रखो बात कि बाबर वाज स्कोरिंग रन्स ड्यूरिंग द पेस प्लेइंग पैंडेमिक व्हेन नो वन एल्स कुड स्कोर रन्स. बाबर और मार्नस लगे हुए थे. ही वाज इनक्रेडिबल. अब मसला ये है, जो कि बात लोगों की बिल्कुल ठीक है, टूर्नामेंट क्रिकेट में इसने नहीं किया कुछ. जो कि इसकी लेगेसी जो बन रही थी ना, अब मेरे लिहाज से तो बिल्कुल नीचे आ गया. He has to rebuild his legacy back again. Yeah, he has to rewrite his legend, that's for sure. हाँ, और 2 ऐसे टूर्नामेंट्स में अभी भी बोलता हूँ कि हैं जिसमें किया परफॉर्म. ठीक है. मैं ODIs की बात. ODIs में 2019 में he was really good. और चलो हाँ, वो T20 वर्ल्ड कप था 2021 वाला. Not entirely bad in the Champions Trophy in 2017, but कोई इतनी significant contribution नहीं थी. Yeah, he wasn't special. 2019 में he was really good and that's about it. But you know, Babar Azam was special overall. He was on course to becoming the best batter that Pakistan had ever produced. That was the trajectory, right? It's down he in the dumps right now. He was Pakistan's favorite son. Well, he's down in the dumps right now and with good reason. He's not the favorite son anymore. नहीं, इस वक्त नहीं. इन स्टैट्स के बाद तो नहीं आप कुछ कह सकते. अब उसे मौका मिला है, ठीक है, T20 टीम से तो बाहर कर दिया उसे. Now this is his chance to regain his lost form. And you know, when Babar Azam was enjoying that peak, ODIs एक ऐसा फॉर्मेट था जिससे लग रहा था यार ये अल्टीमेटली ना when he ends his career he might end up as top 3 batters in ODI cricket of all time. लग रहा था यार. He was averaging over 60 and he was striking it around 90. Those are pretty solid numbers for ODI cricket. हाँ, लेकिन टॉप 3 थोड़ा ज्यादा खेल गए. नहीं, मतलब पॉइंट इज कि he could have been anything. पाकिस्तान का बेस्ट बैटर तो बन नहीं सकता था ODIs में. ODI cricket में he really could have been anything, सादी. You know it. जिस रेट पे 100 ठोक रहा था. I don't know, man. मतलब he could have been anything, लेकिन टॉप 3 मेरे लिहाज से फिर भी नहीं था यार. देखो ना, हाँ, अगर हम कंसीडर करते हैं कोहली एंड विव एंड AB, चलो टॉप 5 कर लो. हाँ, टॉप 5 कर लो. रोहित इज प्रॉब्ली 5 फॉर मी. हाँ, फॉर श्योर. बट पॉइंट इज कि यार देयर अबाउट जिस रेट पे ट्रेजेक्टरी जा रही थी ना, जिस स्टॉक राइज कर रहा था, खास तौर पे ODI क्रिकेट में. आई वांट टू सिंगल आउट ODI क्रिकेट ओवर हियर बिकॉज़ ही वाज लिटरली स्पेशल इन दैट फॉर्मेट. ठीक है. वो बेचारा इतने खेल नहीं पाया उस टाइम में, वो अलग बात है. वो अलग बात है. जब खेला भी है तो कुछ ज्यादा उसके बाद से किया नहीं. बट पॉइंट इज दैट इफ योर प्रीमियर बैटर हु इज सपोज्ड टू बी योर गोल्डन चाइल्ड, ही वाज, ठीक है, ही काइंड ऑफ स्टिल इज बिकॉज़ वी नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, क्योंकि पीक हमने देखी हुई है. इफ दैट गोल्डन चाइल्ड इज एवरेजिंग 31.5 विद द बैट इन 66 इंटरनेशनल इनिंग्स विद 16 50s and 3 ducks, then you've got a problem, Sadi. You've got a major problem. It's an issue and 3 quarters, and I really hope that this is the series where Babar kind of, you know, gets that monkey off of his back. खत्म करो सीन. मार दे यार, शतक जड़ दे बाबर. मैं क्या बोलूं, मुझे तो शक है कि पता नहीं वापस फॉर्म आएगी भी वो वाली या नहीं. अच्छा, मुझे ना, just because he is that caliber of cricketer, or I thought that he is, ठीक है, I still kind of feel that he is. I feel like यार he's one knock away and I've been feeling that for a year and a half now. You know?
तो अब मैं क्या बात करूं? और मैंने ये भी बात की थी यार अभी रिसेंटली व्हेन बाबर वाज स्कोरिंग दीस अट्रैक्टिव नॉक्स ऑफ 23, 27, 29 चार चौकों का प्लेयर पे 5 का बन गया था। 4-5 चौकों का प्लेयर जो बना हुआ था, मैं कह रहा था कि यार व्हाट इज फॉर्म, बिकॉज ही लुक्स लाइक $1 million फॉर दोस 27 रन्स। क्वेश्चन इसका वैलिड है। हाँ, फॉर्म में तो लग रहा था, लेकिन क्या फिर क्या? क्योंकि लेट्स बी रियल, इन 1 year 7 months के पीरियड के अंदर, इज इट अ कंसंट्रेशन इशू देन? I don't know. Perhaps. I really don't know if it's a mental thing or a technical thing. Mohammad Yusuf said recently that he has some, or he's identified some technical flaw that he wants to rectify with Babar. कर ले यूसुफ भाई प्लीज। जिससे मुझे याद आया, ओ so Yasser Arafat came with a statement recently. यासिर अरफात की स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी। Yes. Yasser Arafat was most recently a high performance consultant or coach for South Africa. Yes. Champions Trophy में था. And he said that the major difference between South Africa and Pakistan in the time that he's worked पाकिस्तान with them, के साथ भी थोड़ा सा काम वो जो हफीज जिस टाइम पे डायरेक्टर था ना, हाँ. उस टाइम पे यासिर अरफात वाज bowling coach or something. And this is, by the way, just to give you Yasser Arafat's credentials, he is a certified level 4 coach, ECB coach. coached by the ECB. ठीक है, ECB का certified coach है। बॉलिंग कोच, स्किल्स स्किल्स, या इस तरह की और भी 2-3 चीजें थी। बेसिकली ही इज डन द वर्क, ठीक है। एंड हम तो बहुत देर से ये बातें करते आ रहे हैं कि कोचेस जो भी हायर करने, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई व्हाट सॉर्ट ऑफ कोच यू नीड, और दूसरा यार बैजेस आर एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट एट दिस पॉइंट। दिस इज अ प्रोफेशनल जॉब। ये नहीं कि हाँ मैंने क्रिकेट खेली हुई है मुझे बहुत पता है, ये दिस इज नॉट द कंडीशन। अगर आप फुटबॉल से कंपेयर कर लो ना, आप बन ही नहीं सकते हो किसी मेजर टीम के कोच अगर बैचेस नहीं है। तो क्रिकेट में भी ये हो जाना चाहिए यार, इट इज अ स्पेशलाइज्ड रोल एंड देयर इज नो गारंटी कि अगर आप बहुत अच्छे क्रिकेटर थे तो आप बहुत अच्छे कोच बनो। और यासिर अरफात ने तो की है, ये मेहनत की है। आई मीन अगर तुम हिस्ट्री में बेस्ट फुटबॉल के कोचेस की बात कर लो, होजे मूरिन्हो टॉप लेवल पे नहीं खेला हुआ, एलेक्स फर्गुसन टॉप लेवल पे नहीं खेला हुआ था, जोसे मूरिन्हो तो खेला ही नहीं था शायद। नहीं खेला था, बिल्कुल थोड़ा सा। यार Jurgen Klopp was a player for Mainz, and Mainz was shit. And Jurgen Klopp is at least in this decade probably top 3 coaches easy. आर्ने स्लॉट को देख लो, नो सिग्निफिकेंट करियर एज वेल। हालांकि he must have been a great header of the ball, I would assume. Slot sit in. Yeah. Slot machine. So point is कि Yasser Arafat, who is a certified level 4 ECB coach. And then there's Guardiola as well, who is a great player and great coach as well. आपको इस तरह की चीजें मिलती रहती हैं। Andy Flower is a fantastic coach and a great player as well. ठीक है। Gary Kirsten was. Gillespie is. Gillespie भी वाकई। So खैर पॉइंट में ये मेक कर रहा था कि समवन लाइक यासिर अरफात, जिसने बहुत काउंटी खेली है, इज अ थरो प्रोफेशनल एंड इज अ लेवल 4 सर्टिफाइड ECB कोच, जिसने सरी के साथ भी काम किया, ठीक है। और ये दुनिया में हर जगह खेला है, T20s वगैरह भी खेला है, बिग बैश भी जीता हुआ है, पर्थ स्कॉचर्स के लिए बड़ी तोप चीज थी, राइट। ही वाज विद द टीम ब्रीफली ड्यूरिंग दैट हफीज डायरेक्टर स्टिंट, ये जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गए थे पिछले साल, राइट, पिछला साल ही था ना, या। सो ही हैज कम आउट एंड सेड आफ्टर हिज एक्सपीरियंस एज हाई परफॉर्मेंस कोच फॉर साउथ अफ्रीका कि यार the big difference between South Africa and Pakistan was that even the senior players in South Africa were keen to learn, and in Pakistan they just weren't keen to learn. And he's not the first person to say this, Yasser Arafat. ये बहुत लोग बात कर चुके हैं, हफीज ने भी बात की थी, और भी जगहों से हम सुनते आ रहे हैं, मुझे काफी अपनी सोर्सेस से ही पता चला है कि यार they're just not keen at all, they're stubborn and they're like हमें पता है हमने क्या करना है, और ये ओपन माइंड रखते ही नहीं है, किसी ने कोई हेल्प ऑफर करनी है तो हम सुन तो लें। ये एक मसला है इस टीम का। अब इस टीम का नहीं, इस मुल्क का मसला है, नहीं लोग सीखना चाहते यार। You can say, but इसमें मैं एक different angle भी देना चाहता हूँ। I want to kind of flip the coin a bit in favor of the players. Yeah, there has been so much volatility with respect to administration and coaches in particular. रोज का नया कोच, selection committee as well. यार कोच के साथ आपको relationship भी तो develop करनी पड़ती है, and after they kind of break that barrier with you, then you can move on and seep through and bring like adjustments to the games of players. छोटी सी एग्जांपल ले लो बेराम, तुम या मैं हर रोज कोई नया को-होस्ट आ रहा हूँ हमारा, हाँ, मेरी जगह कोई और रिप्लेस हो रहा हो, और तुम उसके साथ यही वाली केमिस्ट्री ला सकोगे? नहीं, टाइम लगेगा डेवलप करने में। अच्छा, और अभी जाके हमारा पहला एपिसोड देख लो, लिटरली गो एंड वॉच द फर्स्ट एवर प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट, यू विल बी शॉक्ड। उसके बाद 2 3 4 5 जब 7 8 हो गए थे तब हम कंफर्टेबल हुए थे, हमारा बात करने का तरीका ही बदल गया। हालांकि हम पता नहीं कब से जानते एक दूसरे को। या इट्स बीन व्हाट 15 years 16 years since I've known Saad, but you know we once you start working with someone you start to understand their ins and outs। और अभी तो आजकल बड़ा रिसेंटली ये चला हुआ है ना कि सादो बिराम की लड़ाई हो जाएगी, they will have a falling out। मुझे लगता है वेट कर रहे हैं किसी दिन स्क्रिप्ट कर दे लड़ाई। नहीं, मजा नहीं है। देखो, we are two individuals who have two different thinking patterns, और ऑब्वियसली कभी ना कभी क्लैश होना है, क्रिएटिव डिफरेंसेस भी आती हैं। यार लड़ाई नहीं कहते इसे, आर्गुमेंट कहते हैं। एब्सोल्युटली।
ऑफ उसी वक्त बैठे बैठे ही हम ठीक हो गए थे। और उसको तो मैं तब चढ़ गई थी एड में। वो तो खैर तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ी थी, मुझे ओवरऑल चढ़ गई थी सूफी मैक वाली बातें करके। बट पॉइंट इज यार कि कभी भी जब दो लोग बहुत या कोई भी लोग इन एन ऑर्गेनाइजेशन करीब होकर काम करते हैं, करीब होकर कह दिया मैंने, नहीं इतना नहीं, थोड़ा रमजान चल रहा है, PG वैसे show भी है। नहीं होता है Yeah. रमजान की क्या बात है When two or multiple people work closely, they are bound to be, differences in opinion and creative differences होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। But आप जितना लंबा किसी से काम कर लो ना, उतना आपका वो बैरियर हट जाता है। And then you can actually have honest conversations, right? अगर साद और मैं पिछले शो में थोड़ा if we butted heads, that's because we're at that level of comfort where we can butt heads. We can butt heads, और कभी भी कोई ऐसा नहीं हो कि मैं घर गया हूँ सोचे कि क्या क्या फजूल इंसान है साध नासिर। हम लिटरली उसी वक्त ठीक हो गए। Yeah. 2 सेकंड भी नहीं लगे। ठीक है, सो पॉइंट इज दैट अब जहां पे हम कह रहे हैं कि प्लेयर स्टबर्न है, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या बंदा है। सो वेयर वी मेकिंग द आर्गुमेंट कि यार प्लेयर स्टबर्न है, ढीठ है व्हाटएवर। बेशक है यार मैं मानता हूं। उनको भी तो कंसिस्टेंट टाइम ही नहीं मिला किसी ये कोच भी के एक साथ reason। टू काइंड ऑफ फॉर दोस कोचेस टू सीप थ्रू एंड गेट टू द बोन्स ऑफ समथिंग। देखो हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती ना, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज इन Absolutely। बिटवीन। तो और हम ड्रेसिंग रूम में तो है नहीं, ये तो सुन रहे हैं लोगों की बात। प्लेयर्स भी गलत हो सकते हैं, ये वाला मेथड भी गलत है, दोनों ठीक भी हो सकते हैं, आपको क्या पता। एंड मोस्ट लाइकली इट्स प्रॉब्ली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। इट इज ठीक है 100%। कोई भी देखो, जब भी कोई मसले होते हैं ना, वेरी इट्स नॉट वेरी फ्रीक्वेंट दैट वन पर्सन इज एंटायरली इन द रॉन्ग। अच्छा एक और एंगल में लेके आऊं, आप कभी कभार ऐसा भी होता है आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जो ना एक कोच के साथ या बंदे के साथ, तो वो भी आपकी खामियां और उस तरह नहीं बता सकता, और कभी कभार इस तरह होता है आप कहते हो अच्छा जिस तरह चल रहा है तो चलने दो, ये भी एक हो जाता होता है। अच्छा मगर इस पे ही आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट मोहम्मद यूसुफ इज समवन हु दीस गाइज हैव वर्कड विद अ लॉट। काफी देर वो बैटिंग कोच रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर रिस्पेक्ट भी करते होंगे यार यूसुफ भाई की। यार मोयो की रिस्पेक्ट तो वैसे ही बनती है बिकॉज ही वाज सच अ फिनोमिनल प्लेयर फॉर पाकिस्तान। आई नो के प्लेइंग डेज के अंदर और इवन बिट आफ्टर द प्लेइंग डेज मोहम्मद यूसुफ वाज अ कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर इन द सेंस के थोड़ा लड़ाकू सा था। But I haven't seen that in recent years, Moyo. और उसके बाद प्लेयर की क्वालिटी पे तो आप कहते हो ना कि टॉप का बैट्समैन था यार। अब I don't know if Mohammad Yusuf is equipped with modern day batting the way I want him to be. I don't know this. Maybe he is, maybe he isn't, right? He did see a bit of T20 cricket right towards the tail end of his career. ICL में 4 चौके बोले मारे थे 4 बॉलों पे। नहीं ICL में जब वो आया था 4 चौके 4 बॉलों पे। या बड़ा fit खेला था, विकेट भी ली थी। But point is that hopefully he's someone who the players get along with and they already have that existing relationship with, और जो भी tweaks करनी है वो कर सके प्लेयर्स के साथ। मोयो हैज आइडेंटिफाइड दिस राइट कि कोई ना कोई टेक्निकल डिफिशिएंसी उसको अब्दुल्ला शफीक में भी उसने पॉइंट आउट किया, अब्दुल्ला और बाबर में कुछ उसको नजर आया है, तो होपफुली यार वो जाकर वो चीजें ठीक कर दे। फिर यही आप उम्मीद तो यही कर सकते हो। बट यासिर अरफात वाली बात भी और वोलेटिलिटी इन कोचेस वाली बात भी दोनों अपनी जगह दुरुस्त है यार मेरे हिसाब से। अगर हर बंदा आकर कह रहा है कि ये ढीठ है, उसमें भी कुछ सच्चाई है, और हर बंदा इसलिए कह रहे हैं कि बंदे इतने चेंज हो गए तो उसमें प्लेयर्स का भी इतना कसूर नहीं है यार, उनको टाइम ही नहीं मिला टू डेवलप दोस रिलेशनशिप्स के कुछ बन सके, उन कोचेस की कोई बात की कोई इम्पैक्ट हो। ट्रू। Yeah, so you have to look at all sides of the coin in this particular thing, and we can't vilify anyone. Yeah. Anyway, बाबर का क्या कहता है फिर जानी, prediction दे 100 आएगा कि नहीं आएगा? मेरा मुझे मुश्किल लगा। I'll just for the sake of making this interesting, I will say कि बाबर आजम का 100 आ ही जाएगा। मुझे मुश्किल मुझे भी लग रहा है, but क्योंकि तुमने कह दिया no, तो I just want to say yes. अगर मैं yes बोल देता मुझे अभी भी पता नहीं, maybe सादी maybe it is not my analysis and it is my desire that is speaking. यार डिजायर तो मुझे लगता है हर एक की यही होगी कि यार कर ले। A player of Babar's quality कब तक? That's the question that begs answering. क्या पता बस हमेशा तक। यार यही तो नहीं कहना चाह रहा मैं। आपको क्या पता? That could also be true. लेकिन मुझे लग नहीं रहा ना, तो अब मैं किस तरह झूठ तो नहीं बोलने वाला। Yeah. और ऊपर से we talked about the attractive 27s and 23s. There was also the 80 something ball 50 versus India. क्या 64 of 90 something था, ऐसा कुछ था यार। That was really bad. And that innings was terrible PR for Babar Azam. वो अलग बात है कि PR merchants भी काफी हैं बाबर आजम के, but that innings was one of the worst he's ever played. Has to be top 3, right? Worst knocks he's ever played in ODI cricket. और भी होंगी। अच्छा मोहम्मद रिजवान पे क्या ख्याल आते हैं? ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी तो we'd all want to collectively forget the चैंपियंस ट्रॉफी। मोहम्मद रिजवान से मेरे थोड़े सा मसला पता ही है,
नॉर्मल बायलैटरल सीरीज में ना बड़ा अच्छा खेलता है, टूर्नामेंट आता है पता नहीं क्या प्रेशर होता है, क्या होता है, वो हिलता ही नहीं। हाँ, मगर ओडीआई वर्ल्ड कप में ही स्टार्टेड स्ट्रांगली, रिमेंबर दैट टर्न वर्सेस श्रीलंका। हाँ, उसके बाद क्या अभी भी रिसेंटली तुम्हें याद है जब वो 350 और चेस किया तो रिजवान क्या 100 ही मारा इसने? आई थिंक सो, हाँ 100 हाँ, मारा था 100। मारा था, 2 350 प्लस चेज में दोनों 100 एंड इफ यू लुक एट हिज ओडीआई फॉर्म इन रीसेंट टाइम्स इट्स बीन गुड, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी अगर देखो तो ही शैट द बेड ब्रो। रिजवान पे मैं एक ही चीज बोलूंगा, लव रिजू इन टेस्ट एंड ओडीआईज, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। आई लव हिज वॉरियर मेंटालिटी, आई लव द फैक्ट दैट ही पुट्स इट ऑल आउट देयर एज वेल, जान पूरी मारता है, एंड व्हेन ही क्रैम्प्स यू नो ही इज इन फॉर अ स्कोर। सिर्फ ये बोलूंगा यार, कभी कभार क्या काफी ज्यादा दफा आई फील लाइक देयर इज आइदर ए सेकंड थर्ड गियर और ही जस्ट स्लॉग्स इट ब्रो। चलता रहेगा सेकंड गियर में, स्टॉप रोटेट भी नहीं करेगा strike। हाँ। उसके बाद जब प्रेशर इतना बिल्ड हो जाएगा फिर स्लॉग के लिए जाएगा और आउट होएगा, यही है इसका। एंड व्हेन इट वर्क्स आउट ओडीआईज में आप रिकवर कर जाते हो बिकॉज़ टाइम होता है आपके पास, लेकिन नहीं करता नहीं है। व्हेन इट डजंट वर्क आउट देन यू लिटरली पैरालाइज द एंटायर बैटिंग इनिंग्स, और इसने काफी दफा की है। So what I would just say, Mohammad Rizwan, you obviously don't watch this show, but maybe what you need to figure out right now is how to go in for fourth gear and fifth gear. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या आप अपना स्कोरिंग रेट इतना कंसिस्टेंटली गुड रखो कि एक तो आपको वो नौबत ही ना आए कि बस अब स्लॉग करना है। आप सेकंड से सीधा फिफ्थ पे मारोगे, लगता ही नहीं है वो गियर भाई। हर दफा स्लॉग नहीं होगा, कभी कभार आप कैच अप नॉक खेल जाओगे और कभी कभार आप आउट हो जाओगे। सो अपने आप को उस पोजीशन में मत डालो कि आपको कैच अप नॉक खेलना पड़े। दैट्स व्हाट आई वुड से, राइट? इनिंग स्पेस नहीं करनी है। And you know, you have other attacking shots as well. Where's the Pusley shot, for instance, right? Haven't seen it in a long time. बिल्कुल अपने शेल में चला जाता है और मरवा देता है टीम को। और आजकल मैंने देखा है कि कोई प्रैक्टिस हो रही है क्लब क्रिकेट में नई रिलीज शॉट्स की। Maybe we'll get to see some of those release shots now. मैं कभी कहना नहीं चाहता ये, लेकिन वो तो सीधी पीआर है भाई। होगी सीधी पीआर, मगर अगर वो कर रहा है एक चीज पे मेहनत, तो आई वुड रियली लाइक टू सी इफ ही कैन एग्जीक्यूट इट। इधर नेशनल टी20 कब में कर लेता मेहनत? मैंने देखा नहीं नेशनल टी20 कब। नहीं, खेला ही नहीं। ओह, क्लब क्रिकेट खेल रहा है। आप बताओ, और वहां से सारी तस्वीरें और वीडियोस आ रही। बात तुम्हारी दुरुस्त है भाई, तो खेले नेशनल टी20 कप में ये चीजें ट्राई कर लेता। बट चलो अब सीरीज आई है ना, शो अस सम नॉक्स वेयर यू पेस योर इनिंग्स बेटर, दैट्स ऑल आई विल से, राइट? या तो नेट्स में जाए और ट्रेनिंग करे, या फिर थोड़ा बेहतर कंपटीशन खेल ले। और पता है, if you're just relying on slogs as your attacking shots, then you're going to be in trouble. अब देखो स्पिन के खिलाफ इतना अच्छा खेलता है, sweeps well, cuts well. बाय द वे, वो T20s में जो PSL वाला ग्राफ है ना, उसमें इम्पैक्ट इसका थर्ड लोएस्ट है। तो होगा ना? That's so weird, isn't it? Because you'd think Rizwan is a great player to spin, but maybe he's just not getting out to spin. समझ रहे हो? Just blocks it. Yeah. So that is an issue. और rotate भी नहीं करता strike भी। I don't want to see a lot of front foot defense from Pakistan in the series. क्या 75 ball 42 को मैं क्या करूं यार? Far too many times Pakistan in the middle overs will just go and front foot defense कर लिया। स्ट्राइक रोटेशन कहां गई है? You've got to break out of this. हम ये नहीं कह रहे कि आप मिडिल ओवर्स में आकर चौके छक्के ही मारने लग जाओ। आप सिंगल्स तो लो, कम से कम सलमान अली आगा is doing that well. स्ट्राइक रोटेशन कहां गई है? कहां गई? और ये दोनों तो अच्छे थे, दोनों बाबर रिजवान स्ट्राइक रोटेशन में अच्छे थे। बल्कि इनकी तो ये मुझे याद है in their heydays, in their T20 heydays, when they were working as a pair, हम कहते थे यार पता है चौके छक्के साइड पे करो, these guys run so hard, ये सिंगल नहीं छोड़ते। कहां गया वो सारा यार? वो where's your expertise with respect to running between the wickets and rotating strike? Is timidness? Virat Kohli is one of the all-time great ODI batters. Top 3 में है ही है। Virat, Sachin, AB, ये 4 है, top 4 है। I think this should be unanimous at least. Second. सही है। Virat Kohli is the king of taking singles and doubles. Yeah, and he's the king overall. But rotation of strike, वो सिंगल नहीं छोड़ता यार, उसकी इतनी क्वालिटी है, वो आप जहां पे भी बंदे खड़े करते हो वो सिंगल निकाल लेगा। How can you tell me कि यार ये चलो रिजवान नहीं तो बाबर कैसे नहीं कर सकता? और रिजवान को तो अशद जरूरत है इसको फिगर आउट करने की, एंड ही वाज अ बिजी प्लेयर सादी। अब ये तो था बिजी प्लेयर। भाई साहब कंपेयर नहीं कर रहे कोहली को इनसे, हम सिर्फ इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि वो कर सकता है तो ये भी ट्राई करें। उस दिन वो बॉय मेरे पीछे पड़ गया कि हाउ कैन यू कंपेयर शादाब खान टू यूनुस खान? मैं कह रहा हूं आई कंपेयर्ड अ थिंग वेयर बोथ ऑफ देम स्माइल्ड व्हेन दे फेल्ड, व्हिच दे डिड। यू ऑल रिमेंबर दैट। ही वांटेड टू डाई ऑन दैट हिल एज वेल। चलो मगर यार इसमें प्लेयर कंपैरिजन थोड़ी, और अब यहीं पे हमने बाबर और रिजवान को कोहली से थोड़ी कंपेयर करें। हम कह रहे हैं कि टॉप लेवल परफॉर्मर्स जो है ओडीआई क्रिकेट में, दे नो हाउ टू रोटेट स्ट्राइक, इट्स इंपेरेटिव, सो दे विल हैव टू फिगर दिस आउट। डेविड वार्नर कितनी अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करता था। वो तो सब कुछ ही खैर अच्छा करता था, वो छक्के चौके तो मारता ही था, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक कितनी अच्छी होती थी उसकी। ही इज वन ऑफ द ग्रेट ओडीआई बैटर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया मैन। स्टीव स्मिथ से बहुत ऊपर है ओडीआई क्रिकेट में डेविड वार्नर फॉर इंस्टेंस। डाइवी वार्नर कंपैरिजन क्यों लाना होता है? कराची किंग्स कैप्टन।
अच्छा, कुछ और मैं बातें करना चाहता हूँ यहाँ पे, सही है? करो भाई, जस्ट टू करो, काइंड ऑफ करो। रैप थिंग्स अप। पाकिस्तान की हाँ, खुशदिल शाह विल प्ले एज एन ऑलराउंडर एंड आई हेट दैट. You probably hate that as well. Yeah. ठीक है? पेन पकड़ लूं। I hope for the love of God that they rotate Abrar and Sufi Mac properly. ठीक है? मुझे 2 गेम्स सूफी मैक की चाहिए और 1 गेम अब्रार की चाहिए सीरीज में. ये दोनों को ही ना खिला। अच्छा, अगर तो कोई ऐसी बहुत ही सीम फ्रेंडली पिच मिल गई है तो चलो फिर दोनों को ना खिलाना, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, बट प्लीज ये ना करना कि एक बंदा बेंच पे बैठा नहीं, रहे. मेरे लिहाज से फिर भी खिलाओ। I feel like, you know, सूफी को खिला लो। I feel like after that last performance in the T20I, Sufyan Mukim might start in an ODI. He should. He should. At this point, he should. And, you know, I honestly feel that his ceiling is much higher than Abrar. मुझे तो ये लगता है. I know he's a shit fielder. He's a very bad fielder, man. And, you know, मैं नहीं कंपेयर करूंगा अभी दोनों को। अब ये बातें आई गेस करने का क्या ही कितना फायदा है कि राणा फहूम की जगह अब्रार कह रहा हूँ, अराफात होता या मेहरान होता, कोई इस तरह का बंदा होता, अब्बास आफरीदी होता, आमिर जमाल होता, ये अब कितनी हम बात कर लें, और कामी जी का भी कितना ही रोना रोलें कि बेचारे साथ कितनी ज्यादती हुई है। नसीबुल्लाह नहीं है, क्या बातें करें। कामी जी के साथ तो यार बेचारे को 3 पे लाकर फिर कट ही दिया ना, बहुत जुल्म किए कामी जी के साथ। You're a fantastic fielder, कामी जी, don't worry about that. उसके अलावा हारिस रऊफ वापस आ गया। Yeah, so I think that's purely due to his form. हाँ। और कोई रीजन नहीं है, and they're just saying कि यार हम ये क्या सीरीज जीत जाएं, रऊफ की बॉलिंग के ऊपर तो बड़ा फायदा हो तो जाएगा। बेचारे फिर वसीम जूनियर को गेम नहीं मिलेगी, किसी ना किसी को तो गेम नहीं मिलेगी। एंड आज लिखवा लो कि अनलेस पाकिस्तान विन बोथ द फर्स्ट ODIs, हारिस रऊफ विल प्ले ऑल 3 गेम्स। ये हमें अभी से पता है, ये तो कॉमन नॉलेज होनी चाहिए अब तक विद रिस्पेक्ट टू हाउ पाकिस्तान आर अ टीम which always goes for the winning combination and never make any changes. Usman Khan will not get a game. He is Rizwan's concussion sub. So then I suppose before we go on a Jani's break, आओ जरा दो एक प्लेइंग 11s फॉर्मुलेट कर लेते हैं। सादी डाल ओपनर्स दोनों, इमाम अब्दुल्ला, वो तो चेंज भी नहीं हो सकता, और टॉप 4 तो सॉलिड ही है, आई मीन सॉलिड क्या सेट है। अब बाबर को ओपन तो नहीं करवा। ओह अच्छा, दैट वुड बी सो यू नो हिस्टेरिकल एज वेल कि बाबर को आईसीसी टूर्नामेंट के टाइम पे आपने यू वांटेड टू डाई ऑन दैट हिल एज वेल कि नहीं सारी टीम मैनेजमेंट और कप्तान बोलने कि किंग ही करेगा भाई, ओपन बाबर ही करेगा, हम नहीं बदलेंगे इससे, हम हिलेंगे नहीं, और ओपन बाबर ही करेगा। अब तुम देख लेना बाबर फर्स्ट ड्रॉप पे आएगा। हाँ, जस्ट वॉच इमाम अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान, सैल आगा। या दैट्स योर टॉप 5 सॉर्टेड। ठीक है, देन आई विल हैव इरफान खान नियाजी एट 6 आई फील। यस, इरफान नियाजी एट 6 काइंड ऑफ मेक्स सेंस। देन कम्स इन खुशदिल शाह। अब ये हम इसलिए बना रहे हैं इस तरह की टीम क्योंकि हमें पता है यही खिलाएंगे। 7, और इट्स नॉट लाइक दे गिव पाकिस्तान अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विद द सॉर्ट ऑफ स्क्वाड दैट दे पिक, क्योंकि अराफात होता तो मैं तो खिला देता। 7 ये हो गए। अच्छा, 8 पे अब आपका आएगा अब्बास भाई। वैस, हाँ वैस जूनियर आएगा 8 पे, अगर खेला तो खेल लेगा। वैस जूनियर 8, नसीम शाह 9, नसीम शाह 9, 10 पे मोहम्मद अली / आकिफ जावेद। हारिस रऊफ। हाँ, हारिस रऊफ 11 था मेरा। नहीं, अगर ये सूफी मैक को शायद गेम दे। ओह, सो हारिस रऊफ को डालो। रऊफ एंड सूफी। Sufi Mac / Abrar is 11. Now, if it's a seam friendly deck, you could go with 4 seamers. I have no issues with And that. bring in Akif for Muhammad Ali. Yes. I'd bring in Akif. I wouldn't mind if, you know, out of क्या कहते हैं कौन से सीमर्स हैं, नसीम, राउफ एंड वैस जूनियर। यार रोटेट करो, गिव गेम टाइम टू बोथ ऑफ आकिफ जावेद एंड मोहम्मद अली। डू इट, ना डरो, कर दो। So, ये भी कर सकते हैं कि खुशदिल को निकाल के फहीम अशरफ को डाल लें। Yes, they could do that, right? So that's another combination. खुशदिल / फहीम अशरफ कर दो। And honestly, you know what? That might not be the worst thing in the world. क्योंकि I'd literally take फहीम अशरफ्स bowling over खुशदिल शाह, especially in conditions where you know it won't spin. तो इनफैक्ट फर्स्ट टीम में वो उसी की ज्यादा जगह बनती है सादी। If you think about it. राणा फहूम इंस्टेड ऑफ खुशदिल। Based on this squad, राणा फहूम ahead of खुशदिल। वैस जूनियर, नसीम शाह, हारिस रऊफ एंड सूफी मैक / अब्रार। It is not a deep batting lineup. ठीक है, ये एक मसला है। 6 तक है। Yeah, unless you're counting Wasim Junior and Naseem Shah, which you shouldn't. You really shouldn't. नहीं, I'm not even counting फहीम अशरफ। Yeah, तो 6 तक है। बाकी यार I would say just rotate the seamers enough ताकि आपके वसीम जूनियर, मोहम्मद अली और आकिफ जावेद को गुड गेम टाइम मिल जाए यार। I want to see आकिफ take the new ball और उसका वो लेफ्ट आर्म एंगल भी मिल जाएगा। If you end this ODI series by not playing आकिफ जावेद तो मैं तब जाऊंगा। इरफान खान नियाजी नहीं खेलेगा। कब? तैयब ताहिर खेलेगा। हाँ, ये भी हो सकता है। ये लोग तो यही करेंगे। हाँ, Yeah, definitely यही करेंगे। I would have had a certain Kami G over there, but वो मेरी कौन सुनता है यहाँ पे? हम हैं भी कौन? तुम कौन हो? तुम्हारी हम तो वैसे ही यहाँ सर पीटते हैं अपना, होता तो कुछ वैसा है नहीं।
But yeah, these are the different combinations that they could try. They need to experiment, continue to experiment. सबको game time दें अच्छा सा, खास तौर पे fast bowlers को. And yeah, man, pick better squads in the future. और क्या ही कह सकता हूँ मैं. हाँ, Yeah. लेकिन आप लोग ज्यादा इस स्क्वाड को देख के उदास ना हो. टेंशन नहीं लेनी. जानिए हम तो पॉडकास्ट बन सकते हैं जहाँ पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हैं और भी काफी ज्यादा फन गेम्स एंड स्टफ कम्युनिटी बनी हुई है. वहां पे आके आप लोगों से बातें भी कर सकते हैं. आईपीएल का आजकल सुपर प्रेडिक्टर हम खेल रहे हैं, उसमें बड़ा मजा आ रहा है, कंपेटिटिव है. तो वो बनने के लिए आपको या तो पेट्रियन से बन सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से सब्सक्राइब कर लो. वरना इजी पैसा है 031936025545 इज द नंबर. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, मैं डिटेल्स भेज दूंगा. बेराम को ना करना, मुझे ना करना. Yeah. और क्या तरीके हैं बेराम, ये भी बता दो इन्हें. Yeah, so if in 2025 you don't have online banking or still don't have online banking and live under a rock, we've still got you sorted. Saad and I live in Islamabad and we've got our office and studio in E11 Markaz के अंदर, जो वो प्लाजा है ना उसके अंदर हमारा स्टूडियो और ऑफिस है. So come seek us out और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे खुटिश करके, ठीक है. Per 1500 payment we will make you Jani of the podcast for 1 month. There are other ways of course to become a Jani of the podcast. You can gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey. Yes sir. बस शर्त ये है कि knock off ना हो और authentic हो. बाकी it could be any sport, any team, domestic, international, doesn't matter. And per authentic sports jersey. बेराम को आर्सेनल की शर्ट भेजो. मुझे आर्सेनल की शर्ट मत भेजना. आर्सेनल की शर्ट उस पे मैं वैसे देने तो पड़ेंगे फिर इनको. हाँ, जानी प्रिविलेजेस. अच्छा, अगर तो आर्सेनल की शर्ट भेज ही रहे हो तो पोडोल्स्की की भेज देना. और फिर डबल एक्सेल भेज देना, मैं पहन लूंगा. क्योंकि वो मुझे जर्मन्स बचपन से पसंद है. मर्डसैगर की क्यों नहीं चाहिए तो? पोल्टी हैड अ गुड टाइम एट आर्सेनल. मर्डसैगर 2. मुस्ताफी की भेजो इसे. स्कोदरान. अच्छा हाँ. Anyway, so per authentic sports jersey जो आप potentially gift कर सकते हो, you will be made a Jani for 6 months instead of 1, so it kind of could work out to be a better deal for you. बाकी यार come through. As you know, Saad and I, we're on a mission and our mission statement is to change the landscape of sport/cricket coverage in Pakistan. सनसनी खेज और मसालेदार खबरों से दूर, no sensationalism, intelligent sport/cricket discourse को हम discourse को हम promote करते हैं. Discord पे. हाँ, Discord पे. और बाकी यार we're super inclusive, सबको welcome करते हैं, तमीज के दायरे में बातें होती है. आ जाओ बस. Get in. ठीक है. जैसे शादी कहते हैं hashtag सीधा take over. Yeah, it's been a while since we've done that. Right? आगे जाने से पहले नोमी जानी प्लीज एसी चला दो. हाँ, वैसे पता है आजकल ना एकदम से मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है. This is the first time I haven't worn a jacket, for instance. आज मैं मिकी अकेला पहना है. मिकी. या बाल भी वैसे मेरे मिकी वाले ही लग रहे हैं. मिकी आर्थर. No. Okay. Yeah, but would you take Mickey Arthur over Mickey Mouse? Who's your favorite Mickey? Arthur. Yeah, I would take Arthur over Mickey Mouse as well. I was always a Donald Duck kind of guy. Yeah. What's up, Doc? अच्छा. न्यूजीलैंड के स्क्वाड पे आ जाओ. न्यूजीलैंड अब तुम करो, मैं रिएक्शन देता हूँ. अच्छा जी. कप्तान इनका टॉमी लेथम नहीं है. Yes. इंजर्ड हो गया, हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया. Right hand is fractured. Tommy Latham का. Michael Bracewell is gonna be captaining them. Love the beast. Mohammad Abbas is in. Not the Pakistan bowler. This Mohammad Abbas is apparently the son of a former Pakistan first-class cricketer who moved to New Zealand. Azhar Abbas. So I'm really keen to see what he does and क्या करता है ये boy? बैटर. अच्छा बैटर है. चलो देखते हैं खेलता है कि नहीं खेलता. Aditya Ashok. I have no clue who Aditya Ashok is. He's a spinner apparently. अच्छा कोई आइडिया नहीं है. सोदी को रिप्लेस किया इसने. Casey Chapman. Love Mark Chapman. Jacob the Daisy Plucker Duffy. नहीं वो तो टिम साइफर्ट था. मुझे क्या हो गया? टिम साइफर्ट भी नहीं था. वो फिन द डेजी प्लकर एलन था. ये था जेकब डफी था. डफी द पाकिस्तानी बैटर्स प्लेयर. Yes. Yeah. कंफ्यूज हो गया भाई. कोई मसला नहीं. Watch out for Jacob Duffy. अभी तक तो खेल नहीं पाया. उसे देखते हैं आगे खेल पाते हैं. Mitchell Hay has to be in the squad now because Tommy Latham is out. Nick Kelly. No clue who Nick Kelly is. Yeah. Daryl Mitchell. One of their important players, I suppose. Will O'Rourke. Another important player for New Zealand. Ben Sears. He's been good versus Pakistan. Nathan Smith is back. Not a fan of Nathan Smith, but maybe he can prove me wrong. Henry Nichols. यार वो perennial वो he is the Will Young of the middle order for New Zealand. He's replacing Tommy Latham. Yeah. वो उसका वही सीन है कि बस बेंच पे वो बहुत देर उसने वार्म किया. And his brother was Willie Nichols, I think उसका नाम था. He was New Zealand's team manager या media manager, so I can't know him. Yeah, क्योंकि मैं प्रेस बॉक्स में एक जमाने में जाया करता था. नेपोटिज्म डाल लिया था. अच्छा, फर्स्ट ओडीआई के लिए सिर्फ विल यंग, जिसका एक बच्चा होने वाला है जिसका नाम होगा विल यंगर. और विल यंगेस्ट इसलिए नहीं, we don't know if he'll have another kid or not. अभी पहला बच्चा है तो विल यंगर है. फिलहाल विल यंगर आ रहा है या आ रही है, and then we'll have youngest someday hopefully.
Reece Mariu. I love that name, Reece Mariu. Second and third ODI Yeah, में he'll be Will Young's replacement for the second and third ODIs. अच्छा, so some notes that I've made, जल्दी से आप लोगों को बता दूं इन चीजों के ऊपर. As we said, Tommy Latham, who would have captained New Zealand and is always their captain whenever the main guy isn't available. हमेशा sub in captain वो ODI cricket में Tommy Latham होता है. और टेस्ट क्रिकेट में भी. अब तो टेस्ट क्रिकेट बल्कि तो फुल टाइम कैप्टन है. He has fractured his right hand unfortunately. So बता दिया था हमने ये repetition. So Bracewell ने कप्तानी की है T20s में. I liked his captaincy. I have no issues with him. The Beast. Yeah, the Beast will be pretty good in this ODI series as well as captain. I have no issues. Watch out, Babar. Henry Nichols has scored runs versus Pakistan. I've seen him do that in the past. Who hasn't? Yeah, तो हेनरी निकल्स को हल्का नहीं लेना मिडिल ऑर्डर में, ठीक है. और टेस्ट क्रिकेट भी काफी खेला हुआ है वो बीच में. He might be past his prime, but he's still a decent player. Mitchell Hay not particularly impressed सादी. मुझे भी ज्यादा. अब उसको खेलना पड़ेगा क्योंकि because someone has to take the gloves और कीपिंग तो करनी किसी को. तो मिचेल हे is an area of weakness for New Zealand. टॉम लेथम कीपर था. कॉनवे भी नहीं है स्क्वाड में क्योंकि वो आईपीएल खेल रहा है. काफी प्लेयर्स नहीं है यार, बल्कि the best players that New Zealand could have featured in this. टिम साइफर्ड को ही रख लेता. हाँ, टिम साइफर्ड क्यों नहीं रखा? मिचेल हे की जगह साइफर्ड खेल लेता. I don't understand that one. Good that you've brought it up because it doesn't really make a lot of sense, does it? Seifert is a far better option and in form. बहुत ज्यादा. अभी तो पाकिस्तान के बॉलर्स तो वो भी ट्राई कर रहे हैं. उसको ख्वाबों में आते होंगे. क्या पता मिच हे वांट्स टू, मतलब वो ट्राई कर रहे हो कि पता चल जाए इज ही कट आउट फॉर इंटरनेशनल. हाँ, I suppose so, but वो तो करते हैं इस तरह की हरकतें. जिस रेट पे साइफर्ड चौके और छक्के मार रहा था, 22 sixes and 24s in the T20 series, right? I mean, I would have gone with him honestly, but maybe he also wants to take a bit of a break before the PSL. He mentioned it, how he'll be playing with some of these guys in not too long. So he's looking forward to the PSL, right? Timmy Seifert. Sorry. Usually तुम खांसते हो, इस दफा मैं खांस रहा हूँ. So yeah, in terms of people who will miss out due to the IPL. Yeah, due to the IPL. Devon Conway, Rachin Ravindra. And Rachin Ravindra is in form as well, so that's a big one. Conway तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट टीम में था ही नहीं. Mitch Santner, कप्तान, regular captain जो उनका है. Lockie Ferguson, also important, right? And then Glenn Phillips, probably the biggest miss, I would say. खिला क्यों नहीं रहे हो गुजरात वालों? क्या सीन है? पहले मुझे लगा कि इसको इम्पैक्ट सब लाएंगे और मैं उस पर क्रिटिकल था. I was like, गुजरात and what world is Glenn Phillips an impact sub? फील्डिंग में आपको इतना प्रोवाइड करता है. If anything, he's an impact fielder. And he gives you buffer overs as well. मगर वो लाए नहीं उसको. Impact sub Sherfane Rutherford था. Phillips पहले Sunrisers में फंसा रहा है. I don't know why the IPL or people in the IPL don't rate Glenn Phillips because I do feel that he is the biggest miss for New Zealand. That's how good he is in my eyes. और अब तो वो पहले तो था ना कि unfulfilled talent है. अब तो यार फॉर्म भी लग गई थी और पाकिस्तान को तो धो रहा था, कुत्तों की तरह मार रहा था पाकिस्तान को, राइट? Infallible versus Pakistan. अच्छा, इनके अलावा टॉम लेथम इंजर्ड है और साथ मैट हेनरी भी इंजर्ड है. That is also a massive blow, right? Matt Henry is not a part of any IPL team. He's not contracted by the IPL this year. काउंटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था उसने शायद. वो तो उसको लेना चाहिए यार. केंट में ही तो उसने वॉबल बॉल सीखी थी, right? When I interviewed him for Grassroots Cricket, which you should go and check out. काउंटी से मुझे याद है काशिफ अली भी साइन अप कर लिया किसी काउंटी ने. I don't remember किस Kashmiri lad? नहीं, the bowler. जो अभी टेस्ट डेब्यू था जिसका. What's the name of the Kashmiri lad जो खेल रहा है? काशिफ अली ही था शायद. काशिफ अली है. I think so. हाँ, वो जो बैटर है, बैटर, KPL वाला बैटर है. अब वो बल्कि अच्छा खेल रहा है काउंटी क्रिकेट में. काशिफ ही था. बल्कि ओपनिंग डे पे काउंटी क्रिकेट किया. ओपनिंग गेम में ही स्कोर्ड ट्विन हंड्रेड्स फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, राइट? वो साका का है. साका का पता है तुझे? साका या ओसाका? नहीं, सुन काका, बैटरी सिर्फ ओसाका. नहीं, मुझे आर्सेनल वाले साका का पता है. नहीं, बुकायो नहीं. Bukayo. Yeah, not Bukayo. Love you. This Saka is South Asian Cricketing Association. अच्छा, SAC है. हाँ, तो तुम क्या कहते थे? SAK, मैं समझता था साका. मैं उसको भी साका ही बोलता हूँ. बहुत साके हो गए हैं, ठीक है. अभी वो जाफर चौहान भी साका के थ्रू इंग्लैंड की स्क्वाड में सिलेक्ट हुआ था. सो काशिफ अली इज आल्सो प्लेइंग काउंटी क्रिकेट वाया साका. लेट्स सी इफ ही इज गुड इनफ टू फीचर फॉर इंग्लैंड समडे, राइट? बिल्कुल, बहुत बड़े टैंजेंट पे चले गए हम. काउंटी से निकलते गए. मैट हेनरी से बात शुरू हुई थी. ऑब्वियसली वी सॉ दैट ही इंजर्ड हिमसेल्फ इन द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी. हैजंट रिकवर्ड येट. दे थॉट ही वुड रिकवर इन टाइम. T20 स्क्वाड में ओरिजिनली था. अब पूरे टूर से ही बाहर हो गया. पाकिस्तान का जो टूर है न्यूजीलैंड का, राइट? सो विल यंग आल्सो रिसेंटली स्कोर्ड अ टन. पाकिस्तान को ही मारा था 100. कितना खेलते हो न्यूजीलैंड के खिलाफ. ये दोनों टीमें बस खेलती रहती हैं. They play each other an awful lot, right? पिछले जब से न्यूजीलैंड ने वो टूर कैंसिल किया था ना लास्ट मिनट, तब से बस खेलते ही जा रहे हैं पाकिस्तान को. I don't mind honestly, it's a quality. Even their bench strength is quality. न्यूजीलैंड की यही खास बात होती है. They're better than us. Bench strength is better than us. पाकिस्तान से तो बेहतर ही, बल्कि वो तो पाकिस्तान में आते हैं तो वो एक आधी सीरीज ड्रॉ भी कर जाते हैं, कुछ जीत भी जाते हैं. मारते हैं भाई. ट्राई सीरीज जीते हैं. हाँ, ट्राई सीरीज भी जीते हैं वो.
इतना विजिट किया उन्होंने कि ट्राई सीरीज में तो वो होम टीम थे. बट विल यंग, आई नो he'll be available for the first ODI, but him not being available for the second and third is a big miss. Because I don't know, man. Reece Mariu, great name. Wonderful name, but Reece Mario एक तो inexperienced है और दूसरा I looked up his record सादी. In List A cricket दोनों ने साथ बैठ के देखा था, right? 12 List A games for Reece Mario, जो कि ये ODI cricket है, तो List A form is more relevant. He's only scored 328. 27.33 की average. Yeah, so if you're scoring 328 runs in 12 List A games at 27.33, that's not stellar. सिर्फ 2 50s है. 0 hundreds. No hundreds. But first class career. शानदार. Crazy. He scored 1420 first class runs thus far at 61.73. एक तो नाम रीस मारियो, ऊपर से 60 plus average in first class cricket. I know कि 1420 runs is a small sample size, but it's not ridiculously tiny either. ठीक है? So clearly New Zealand selectors see something in this kid. और अब हमें भी देखने को मिलेगा क्योंकि जब विल यंग जाएगा तो हमें I'm guessing Reece Mario will play. निक केली का कोई आइडिया नहीं है. कोई आइडिया नहीं है. आदित्य अशोक, निक केली. आदित्य अशोक इज अ स्पिनर. अच्छा, निक केली का मुझे कोई आइडिया नहीं है. नेथन स्मिथ को भी मैं थोड़ा ही देखा, ज्यादा नहीं देखा. पता तो है ना कि पेसर है. I really hope Mohammad Abbas gets a game. Mohammad Abbas. Yeah. Azhar Abbas's kid, right? यार अब देखने में मजा आएगा. Have you? I want Abbas and Ashok both to play. मजा आएगा. I want to see new players ताकि हम उनकी भी कुछ नई चीजें सीखें. और वो भी हमें आगे धोएं. But let's just say that an already depleted side जो न्यूजीलैंड की थी due to injuries in the IPL, this is even like this squad is further depleted. Latham भी गया, Henry भी गया, Will Young भी एक ODI के लिए available है. Pakistan should in theory win this series, even if they experiment. Predictions दे दो अपनी पर. 2-1 पाकिस्तान. Scoreline prediction. यार 2-1 पाकिस्तान. पता है हमारे जो जानीज वाला चैट है ना, उसके अंदर मैंने प्रेडिक्शंस अपनी ऑलरेडी दे दी हुई हैं. आ गया वे? हाँ, वो आ गया वे. शेख ने लगा दिया. बट शेख ब्रो, आई डिड नॉट नो कि और लोग इंजर हो गए. ठीक है, मुझे नहीं पता था कि टॉमी लेथम भी गायब हो गया. टाइम होगा चेंज करने का. लिटरली विल यंग एंड टॉम लेथम were the two guys who scored a ton versus Pakistan in the Champions Trophy. दोनों ही बाहर हो गए. Will Young is available for one game. So keeping that in mind, मैं अपनी prediction 2-1 पाकिस्तान ही कर रहा हूँ. एक मैं कुलैस्प सेंस कर रहा हूँ पाकिस्तान का. Kulasps Maximus, ठीक है. And yeah, I feel like Pakistan really like. There's no reason they shouldn't win this series. Prediction दे दो. और ऊपर से एक और बात है. Okay. This is a bilateral ODI series versus a depleted team in a format where, you know, teams don't really care. So that's when you back Pakistan, right? To win. Prediction दे दे. 2-1 ही है जानी मेरी भी. पाकिस्तान 2-1 पाकिस्तान. चेंज कर रहा हूँ मैं शेख, कुछ लोग और इंजर हो गए. उधर क्या लिखा हुआ था? वहाँ न्यूजीलैंड थी. 2-1 न्यूजीलैंड. बट लाइक टॉमी लेथम एंड विल यंग आर टू बिग प्लेयर्स दैट आर गॉन. अच्छा, और हाई स्कोरर यार, you know what, जाते अपने जानी के साथ. कैसे हो चैटमैन? अच्छा, लोग सरप्राइज होंगे. अच्छा, मैं बाबर के साथ जा रहा हूं. लो भाई, अभी कह रहा था कि नहीं 100 नहीं मारेगा. 100 नहीं मारेगा. 3 मैचेस में एक्यूमुलेट कर लेगा. I mean, Mark Chapman loves playing against Pakistan, so I feel like I would say that even though, you know, people might think Daryl Mitchell is New Zealand's most crucial player, Mark Chapman is the guy. Wait, Daryl Mitchell को तो मैं भूल गया था, लेकिन I'm sticking to Babar. I'm sticking to Mark Chapman. Most wickets. Highest wicket taker. I've got a feeling we'll see the best of Naseem Shah in this series. I don't know, gut feel. I'm going with Jacob Duffy. That's a safe call because he took 13 wickets in 5 T20 as देखो, एक सेफ कॉल नहीं ली. एक सेफ कॉल ले ली. It's crazy, right? 5 मैच खेला Jacob Duffy in the T20 eyes. 13 wickets at an average of 8, economy of 6, strike rate of 8. 35th था in the T20 rankings and he's now 5th. Duffy, the Pakistani batter slayer. So that's a safe call. But I don't know, मुझे नसीम से feelers आ रहे हैं, but ये feelers ही हैं यार. ये लिटरली गट. तुम्हें क्या लगता है बाबर की मैंने फीलर्स भी दिए? पता नहीं, एनालिसिस नहीं है इसके अंदर. आई फील लाइक नसीम को थोड़ा रेस्ट मिला एंड ही इज आल्सो गॉट अ पॉइंट टू प्रूव. एक मैच खेला था नेशनल T20 कप में, 4 ओवर में 41 या 44 पड़े थे. हैं ना कर. वेल, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अभी. बट या लेट्स सी. आई एम होपफुल दैट नसीम शाह डज वेल. ठीक है. और या यही होती है प्रेडिक्शन शादी, और तो कुछ रह नहीं गया. छक्के के कौन सबसे ज्यादा मारेगा? छक्के भी चैपमैन को दे दे भाई. मैं जा रहा हूँ ब्रेसवेल. यार मैं सब पता है. I just don't understand why they don't have Finn Allen and Tim Seifert in the squad. जीत गए थे ODI सीरीज उन दोनों के साथ. यार वो ट्राई करना चाह रहे होंगे नए प्लेयर. क्या है उनको, क्या है? It's not like we have an ODI championship anymore. क्योंकि पहले तो ये था ना बीच में. ODI championship थी. If you are below a certain barometer, you have to play the qualifiers. जो कि साउथ अफ्रीका ने एक दफा खेले थे ना शायद. I don't remember. T20 के खेले थे या साउथ अफ्रीका ने. वेस्ट इंडीज और श्रीलंका ने तो खेले थे ODI वाले. I think South Africa might have played the T20 ones, bro. Might have. नहीं खेले. अच्छा, मुझे बिल्कुल ज़हन में याद नहीं आ रहा, बट मे बी यू गाइस कैन करेक्ट अस. देखो ना, अब उन्हें पता है रचिन, कॉनवे,
सैंडर, लॉकी, फिलिप्स, मैट हेनरी, टॉम लेथम, ये तो हैं 7 प्लेयर जो खेलेंगे ही खेलेंगे। नए प्लेयर्स को ट्राई करो। हाँ कर रहे हैं वो। अगर नहीं ये चलते तो मे बी दे कैन ब्रिंग इन टिम साइफर्ट और क्वाइट ऑनेस्टली जीतनी तो पाकिस्तान को सीरीज 3-0 चाहिए, जिस लेवल की टीम खिला रही है न्यूजीलैंड। 2-1 जीतेगा। प्रेडिक्शन 2-1 है, बट दैट इज अ स्क्वाड वेरी लो ऑन क्वालिटी, क्योंकि लिटरली मैं यही कह रहा हूँ यार, साइफर्ट और फिर एलन डाल देते, मैं फिर से 2-1 न्यूजीलैंड कर देता अपनी। मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, दैट्स इट। ये बैटिंग है उनकी। लिटरली एक्सपीरियंस यही है उनके पास। हेनरी निकल्स और एक मैच में विल यंग है। बॉलिंग में चलो फिर थोड़ा सीन है, विलो रोक एंड बेन सीयर्स कैन रियली ट्रबल पाकिस्तान। जेकब डफी, एंड ऑफ कोर्स जेकब डफी, हाउ कैन वी फॉरगेट डफी, द पाकिस्तानी बैटर स्लेयर। नेथन स्मिथ द ब्लेयर टेक्नर इंपर्सनेटर, सेम हेयर सेम स्टैश, कैट लाइक। अच्छा, डॉपलगैंगर से याद आया, यू गाइस नीड टू गो एंड गूगल ह्यूगो वीविंग, HUGO space WEAVING, एंड एक दो तस्वीरों बाद जब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, उसकी जवानी की तस्वीरों पे आओगे। कार्बन कॉपी है अपने ट्रिस्टन स्टब्स की। ट्रिस्टन स्टब्स थोड़ा सा बूढ़ा हो जाए ना, इन हिज 40s। हाँ, सेम टू सेम फेस यार, बिल्कुल सेम शक्ल है। इट्स अनरियल हाउ सिमिलर दोस टू गाइज लुक, राइट? So predictions are done, Saadi. Time to discuss some PSL stuff. PSL आ रहा है, Anthem भी आ रहा है, अली जफर भी वापस आ रहा है। Yeah, dude. I mean, look, 10 seasons हो जाएंगे PSL को. We are, literally at the brink of the 10th season, right? PSLX, right? Yeah. 5वां Anthem गा रहे अली जफर। अच्छा, इसके अलावा 9 सीजन में एक तो वो फवाद खान एक तैयार हो विद अली अजमत एंड विद ऑल दोस गाइस, एक वो ग्रूव मेरा विद नसीबो लाल एंड यंगस्टर्स एंड आयमा बेग, एक आतिफ असलम एंड आयमा बेग, एंड नहीं शे गिल का भी था ना, फारिस शे गिल, अब्दुल्ला सिद्दीकी। यस, दोस आर द अदर 5। yeah, it's crazy. I don't know like what sort of, क्या कैनी यार का ट्वीट था ये, what sort of chokehold Ali Zafar has on the PSL. मजे की मैं बात बताऊं, कैनी यार के ट्वीट देखने से पहले मैंने तुम्हें यही एग्जैक्ट वर्ड बोला था, chokehold ये क्या है? मैंने ट्विटर खोले आगे, कैनी यार नहीं उल्टा, प्यार कैनी यार chokehold कह लो, stranglehold कह लो, दोस्तियां कह लो, दोस्ती यारी। अब कहां गई है दोस्ती यारी ब्रिगेड? लिटरली आई किड यू नॉट, आई फील लाइक अली जफर की कोई सेटिंग हुई है, होगी दोस्तियां, कोई ना कोई दोस्ती है इसकी। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ his, forget all the controversial stuff for just 1 second. Can you, I can name you 4 to 5, even maybe 7 to 8 artists, music artists in Pakistan, singers who right now are far more hot than Ali Zafar in terms of the tracks they're producing. यार देखो, अब म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक सब्जेक्टिव होता है। Yes. वो तो नहीं कह रहे कि आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, इसका कौन है। आपको कोई गाना पसंद आएगा जो मुझे नहीं पसंद आएगा, मुझे कोई गाना पसंद आएगा जो आपको नहीं पसंद आएगा, और एंथम्स के साथ भी PSL के हमेशा यही होता है। मेरे लिहाज से ना जो नया आर्टिस्ट आता जाता है उसको ज्यादा मौके मिलते जाने चाहिए, जो भी हो। एब्सोल्युटली, मुझे वो गाना पसंद आए या ना आए, हाँ, दैट डजंट मैटर टू मी। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट लाइक ही इज टेंटेड, अली जफर, वो भी एक जगह से आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखो ना, वहां पे भी 50-50 डिवाइड होता है ना, तो इसीलिए मैंने कहा उसको अगर आप साइड में भी रख के देखो, मेरे लिहाज से तो नहीं गाना चाहिए था अली जफर को, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ के नए आर्टिस्ट को मौका मिलना चाहिए। यार मेरे हिसाब से दोनों चीजें, ये तो चल तेरा ओपिनियन था ना, यू आर ऑब्वियसली एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। माय ओपिनियन इज कि एक तरफ देयर इज द आर्गुमेंट दैट देयर आर सो मेनी बडिंग यंग सिंगर्स इन पाकिस्तान हु आर डूइंग सो वेल, लिटरली ग्लोबल स्केल पे दे आर डूइंग थिंग्स। झोल बाय मानू is breaking records, ठीक है? हुण दे रोज तेनु चांदे जांदे, मेरे हुस्न ते मर गए 80 रोज, की करिए सजना बो। उसका बल्कि वो वाला शुरू वाला पार्ट बेहतर लगता है मुझे, कहता है मेरे साथ कदी भी ना डरी मेरे प्यारे, दिल विच तू मेरी हसरत तू, असी तेरे उत्ते मर दे नहीं सुन दे नहीं क्यों। Anyway, मानू तो खैर वैसे ही मेरा जानू है, बॉय है मेरा तो। नहीं जानू है, मानू है ना, तो मानू is जानू। Shout out to मानू सकी, असफंद बेसिस्ट एंड यूसुफ रामे एंड ऑल द क्रू, लव दोस बॉयज, ठीक है? तो वो तो चलो मेरा थोड़ा बायस भी आ गया यार, हसन रहीम could have been the artist who sings this। इसलिए मैंने सबसे पहली बात ये कही थी
कि जो नया आर्टिस्ट आएगा ना, आपको शायद ना पसंद हो, हम थोड़े ओल्ड फैशन भी होंगे। हाउ अबाउट अब्दुल हनान? मतलब Solid option? यार बहुत ज्यादा ऑप्शंस की कमी नहीं होती म्यूजिक में पाकिस्तान को। या आजकल तो बल्कि एक नया वो क्या कहते हैं, रेनेसांस हो गया म्यूजिक का विद इन पाकिस्तान। इट्स जस्ट दैट के और यंगर क्राउड को अट्रैक्ट करते हैं सारे म्यूजिशियंस। अपनी अगर प्रेफरेंसेस निकाल के देखो ना, PSL और इस तरह की जो इवेंट्स होते हैं, दैट्स फॉर ब्रिंगिंग ऑन न्यू फैंस एंड यूथ। यू हैव टू टारगेट द यूथ। और यूथ को जो पसंद है उधर से ढूंढो यार। और भाई हुक्का पानी और छन्नों की आंख को बहुत टाइम हो गया। छन्नों की आंख में एक नशा है। नहीं, पहले 3 अच्छे थे यार इसके, ये नहीं कह रहे। नहीं, वो पहले 3 बहुत अच्छे गाने हैं PSL के। आई हेट द हे या बाबा हे या बाबा, जहर लगता है मुझे। पिछले वाला वाज ऑफुल, फजूल गाना। probably my worst. It probably was the worst anthem ever, man. Although I don't like the Fawad Khan one either. फवाद खान वाला भी ठीक है, लेकिन I don't mind that. मुझे इससे मसले थे। हे या बाबा से बेहतर था फवाद खान ये वाला। क्या था? ये बहुत फजूल एंथम था, ठीक है। Look, clearly he's got some relationships, and बीच में इसको जो sideline किया था was because of his वो जो scandal, हाँ. his scandal, right? And the wifey Aliza was actually offered a role as a dancer in the music video Saadi, and she had that dilemma, ठीक है। और मैंने इसको बोला यार तुम ऐसा करो ना, रिहर्सल पे जाओ, डोंट लिमिट योरसेल्फ राइट नाउ, प्री कंसीव्ड नोशंस मत रखो, गो टू द रिहर्सल एंड देन मेक अ डिसीजन। एंड शी वेंट टू द रिहर्सल and she opted out. उसकी multiple वजह, one reason is Ali Zafar singing the song, but also उसको थोड़े creative differences भी नजर आ रहे थे। Hello. But anyway, I can also inform you that there is a famous singer who said no because of Ali Zafar's participation. अच्छा चलो, तो ये I don't want to get into that Yeah, stuff. but he's not alone in the anthem. That's some respite over here. Natasha Beck, Who I don't know who she is. I know of her, लेकिन मैं मजे की बात बताऊं, मैंने गाने नहीं सुने। I know of Natasha Noorani. वो तो है ही, नताशा बेक का भी पता है मुझे। अगर कोई मजे का गाना नताशा बेक का तो भेजो हमें नीचे कमेंट्स पे ताकि सुनूं मैं। और फिर तसादी का बॉय तो है ही है, The goat, Tala Anjum. Talanjum. I don't know if he's the goat. He is the goat rapper from Pakistan. Not बस। Bohemia. नहीं नहीं, बोहेमिया का उसका- बोहेमिया की क्या $500 की अंडरवेयर क्या सीन था? Balenciaga नहीं क्या? हाँ, Balenciaga। It's a really disturbing clip. Don't watch it. वो नादिर के पॉडकास्ट की सारी क्लिप्स डिस्टर्बिंग ही होते हैं भाई। I think that's his USP. लेकिन my boys, आज जो नीचे गोट को सपोर्ट करना है। अच्छा, पता नहीं। I mean, Shut like you said, music is subjective. हाँ तो बस चुप कर जाओ ना। All I would like to say over here that he's not the best Tala. मुझे उसका दूसरा वाला बॉय ज्यादा पसंद है। तला यूनस ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। तूने हाथ बांध सुना है? हाँ, हाथ बांध इज अ ग्रेट सॉन्ग। हाथ बांध मेरे, हाथ बांध। चलो सब्जेक्टिव है, मैं नहीं आगे कुछ बोल रहा, है। मुझे तब चढ़ा दिया। अच्छा, एक और बंदे को तब चढ़ी है, सिर्फ तुम्हें नहीं तब चढ़ी। अली तरीन तब। Ali Khan Tareen was quite pissed and took to social media to express his anger of how the same middle-aged dude keeps landing this gig. अच्छा भाई, तो फिर मुझे इतनी तप नहीं चढ़ी। I was disappointed. I was like, नहीं यार, फिर से मुझे थोड़ी ये हुई था कि यार वाकई फिर से हम अली जफर की तरफ ही जा रहे हैं। बस क्या है? ये नहीं, लाइक वही वाली साथ की बात बिल्कुल ठीक है कि स्कैंडल को एक तरफ रख दो। आप लिटरली यार, यू हैव नो डेर्थ ऑफ टैलेंटेड म्यूजिक आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस इन दिस कंट्री। इस वक्त तो एक हाइट पे चल रही है पाकिस्तान म्यूजिक गेम। यार मेरे लिहाज से ना बहुत पसीना आ रहा है मुझे आज। हाँ, बहुत। कोई भी हो ना इस तरह का शोभा, शोभा बोल ना, गया मैं भाई। शोभा बोल गया। शोभा डे, आर्टिस्ट हो, एक्टर्स हो, नॉर्मल हमारे इधर स्टाफ हो, कोई भी हो, आई वांट कि जो भी यंग है उसको मौका मिले ना। या जो भी है, अब कोई नया एडिटर आएगा फिट और मेरे पास हमें हायर करने के पैसे होंगे तो हम क्यों नहीं करेंगे यार। कोई फिट सा अगर पॉडकास्टर/ब्रॉडकास्टर है तो साथ आई वुड हैव नो qualms in giving that person an opportunity either, but we obviously need to see a portfolio before. ये नहीं, शौक पे कभी भी नहीं रखेंगे। मुझे पर्सनली काम दिखाओ। पर्सनली मुझे ये है कि जो भी अप एंड कमिंग टैलेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा मौके मिलने बल्कि I have earmarked someone, Maheen. So we will bring her on at some point. नेम ड्रॉप कर दिया इसने। हाँ, I mean go check out her work for Spotify 360. पता नहीं वो कहाँ से मिलेगा, कोई अच्छा YouTube। चलो आगे बढ़े हम। Yeah. But anyway, point is कि नए टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा सादी, you have some news with respect to replacements within PSL teams. I mean आप लोगों को अब तक तो पता ही चल गया, मगर we can talk about them a bit. Let's go. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक तो रासी वैन डर डूसन इज पार्शियली अनअवेलेबल। Yes. कोई उसकी पर्सनल कमिटमेंट्स है।
तो उसको रिप्लेस किया है एलेक्स केरी से। आई लव दैट पिक। हाँ, so- क्योंकि एलेक्स कैरी की बड़ी फॉर्म लगी हुई है, सप्लीमेंट्री पिक है। हाँ, और पता है एलेक्स कैरी ने अपनी गेम बड़ी अप की है। He has multiple sweeps versus spin. He can take spinners on going down the ground, and then he also has this short versus spin जिसके अंदर ना वो pierce करता है कवर वाले गैप को, ठीक है, कवर और मिड ऑफ के दरमियान वाले गैप को, और आपको लेफ्टी की ऑप्शन मिल जाती है। सो ही इज गिविंग यू लॉट ओवर देयर, कीपिंग भी कर लेता है साथ ही। एंड अभी तो मैं स्पिन की गेम टॉक अप कर रहा हूँ, ये तो रिसेंटली इंप्रूव हुई ना ज्यादा। पेस के खिलाफ तो वैसे ही अच्छा था, he is always in good versus pace, and he also played that very handy knock, or very amazing knock in fact, versus India in the Champions Trophy semi-final as well. So I love that carry replacement pick. उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी 2 सप्लीमेंट्री पिक्स रिजर्व की हुई थी, उसमें से एक उन्होंने की है मोहम्मद शहजाद दी ऑलराउंडर, जिसने कायद आज़म ट्रॉफी के फाइनल में सेंचुरी भी मारी, फाइफर भी लिया और क्रेजी परफॉर्मेंस। मोहम्मद शहजाद हैज बीन ऑन एन एब्सोल्यूट टीयर। अभी नेशनल टी20 कप में उसने एक अमेजिंग कैच भी पकड़ा था, कमाल टैलेंट लग रहा है। बाय द वे उससे मुझे याद है कल एक लड़का है फरहान यूसुफ, हाँ, उसका कैच देखा है मैंने उसका कैच अनरियल लिटरली यार, मतलब। और एक वो साहिबजादा फरहान, स्पीकिंग ऑफ फरहान्स, वो भी पागल हो गया। साहिबजादा फरहान 3 सेंचुरीज 250s, और उनमें से 2 सेंचुरीज हैं, 162 और 148। क्रेजी फॉर्म, पागल हो गया बॉय। You better name your साहिबजादा फरहान now, right? यार इस फॉर्म को कैसे इग्नोर How करो, will you ignore PSL में भी नहीं। It's really unfortunate, and he had a decent season last year. I know stellar नहीं था, but 38 की एवरेज थी, I think 135 की स्ट्राइक रेट पे, जो ग्रेट नहीं है, but probably good enough to get you in another PSL gig. इसीलिए 2 और टीमें ऐड करनी इंपेरेटिव है भाई। But you know, I love the मोहम्मद शहजाद पिक, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोडेड पिक है ये। वही इस तरह के लोग उठाते हैं। लेकिन मुझे अब साहिबजादा फरहान के लिए दुख हो रहा है कि यार उसे PSL में होना चाहिए। शायद आ जाए। Some other teams have some supplementary picks left, right? Only Peshawar does. So maybe they have already a lot of openers. But you get the drift, like 8 टीमें होनी चाहिए, और maybe there's still time. Maybe Quetta can blink. Quetta can bring him as a partial replacement for Mark Chapman, who is partially unavailable. कैसे हो Chapman? Nah. Yeah, I mean that's unfortunate. उसका भी I think baby हो रहा है. That's probably why he has to return. Quetta will need to figure out. Lil Chappy आ रहा है. Lil Chappy. एक जगह Will Younger और फिर Lil Chappy. Yeah. Chappy Junior. So yeah, I mean look, they're gonna have to figure out कि किसको लाना है उसकी जगह, क्योंकि अब मार्केट में तो कोई खास बंदा नहीं रह गया शादी। कौन ही आएगा? तू गिर ही गया था यार। नहीं मैं साहिबजादा बोल रहा हूँ। अच्छा। And Quetta haven't really named any supplementary picks, right? So interesting. नहीं supplementary तो उनका squad पूरा है, सिर्फ एक Mark Chapman is partially unavailable. Just a bit on Mohammad Shahzad, seam bowling all-rounder, under 19 star, former, Lodhra Academy, Ali Khan Tareen has been mentioned again in this podcast, weirdly enough. मुल्तान में भी था ये। हाँ, मुल्तान में भी था, और लोधरा की वो AKT की अकेडमी में ट्रेन भी करता रहा है काफी। Looks like a real talent, and यहाँ पे जो पेस bowling या seam bowling all-rounder मिल ही नहीं रहे, maybe he can slot in the future. Maybe. Don't rush him. नहीं करीब भी नहीं है। But blood him, and I hope that he gets some game time in Islamabad as well. अभी मैं यार वो शाहजेब अली भाई हैं, यही नाम है ना उनका, जर्नलिस्ट है, उनकी ट्वीट देखी थी मैंने शहजाद की फॉर्म पे प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में 50 प्लस एवरेज थी, और कोई 20 विद द बैट 50 प्लस एवरेज थी। सॉरी मैंने उस वक्त कायद आज़म ट्रॉफी बोल दिया था। You meant President's Trophy. So in the President's Trophy, he scored 500 plus runs and averaged over 50 with the bat, and with the ball I think he took like 20 wickets if I'm not wrong. Yes. Something like that. Wickets का number 20 wicket का number नहीं याद, मगर एवरेज उसकी बहुत कम थी। मैं कह रहा हूँ 20 विकेटें थी। I can't remember the average, but it was either 20 or 18 or 24 at best. उसके बाद वही फाइनल में सेंचुरी एंड फाइफर। Goated performance in the President's Trophy. So I'm really excited to watch Mohammad Shahzad in the PSL, guys. 2 और franchises ने picks की हैं। अच्छा, एक और सवाल है। एक सवाल है तुझसे। Does Mohammad Shahzad qualify as an emerging pick? I'm pretty sure he does. I hope I'm pretty sure he does, because then we'll definitely get to see him. Obviously he does. होना तो चाहिए। Yeah. अच्छा जी, और अब किस टीम पे आना चाह रहे हो? पेशावर की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, जॉर्ज लिंडा आ गया है कॉर्बिन बॉश की जगह in the diamond category, क्योंकि कॉर्बिन बॉश is playing in the IPL. A few thoughts on this. He's not playing in the IPL though. Yeah, Corbin Bosch won't get a game in the IPL, but he'll earn more money in the IPL. Plus उसका जो rationale था ना, वो काइंड ऑफ मेड सेंस। उसने कहा यार मुंबई इंडियंस ने मुझे साइन किया है, और मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजेस हर जगह हैं, सो इट्स अ बेटर मूव फॉर मी करियर वाइज। हमने तो पहले भी नहीं कोई वी नेवर ब्लेम कॉर्बिन बॉश फॉर दिस। हमने ये जरूर कहा था कि जब आपका ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाए PSL में, आप कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करा लो और कोई क्लॉज रख लो व्हिच प्रिवेंट्स दिस फ्रॉम हैपनिंग इन द फ्यूचर, बट वी आर नॉट गोइंग टू विलिफाई और ब्लेम कॉर्बिन बॉश ओवर हियर। जाओ अगर तुमने मुंबई का बेंच वार्म करना है और उम्मीद रखनी है कि पैसे कमाने का, अगर MLC में
मुंबई की टीम से तुम्हें स्टार्टर बना MI न्यूयॉर्क, MI न्यूयॉर्क में स्टार्टर हो गए तो वेल एंड गुड फॉर यू. कॉर्बिन बॉश, ही इज आल्सो 30, राइट? ही इज गॉट टू थिंक अबाउट दीस थिंग्स. जॉर्ज लिंडा इज नॉट लाइक फॉर लाइक. George Linda is a slow left armer who can bash it. लिंडा की पिक ने ना मसला मेरे मेहरान मुमताज बॉय को डाल दिया. Similar profile. He's literally screwed over मेहरान मुमताज. मेहरान मुमताज स्टार्टर था. अब मेहरान मुमताज को पता नहीं गेम भी मिलेगी कि नहीं, और मुझे बड़ा दुख है इस चीज का. और लिंडा, no disrespect, he's had a fantastic time recently. ऐसे 20 में पागल हो गया था. और पाकिस्तान को भी अभी T20s में बड़ा मारा. पाकिस्तान को भी चेपा था. He was phenomenal in the SA20. He will probably be a starter for पेशावर. पता नहीं अब ये तबसरा तब करेंगे जब PSL ज्यादा करीब होगा, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा. मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे स्क्वाड्स जो है ना रिफ्रेश करने पड़ेंगे. एंड वी विल PSL से पहले ना हम 2 वीडियोस निकालेंगे, ठीक है, राइट बिफोर द PSL. 3 स्क्वाड्स को बांट करना इस तरह इन सेट्स ऑफ 3. वी विल प्रीव्यू द PSL. दैट्स प्रॉपर स्क्वाड एनालिसिस. जिस तरह हमने IPL किया था ना, 10 टीम्स को 5 में स्प्लिट करके 2 एपिसोड निकाले थे. PSL के लिए वो 3 टीम्स पर एपिसोड हो जाएगा, राइट? आइडियली हम चाह रहे थे कि हर टीम को अलग करें, लेकिन टाइप नहीं है यार. ईद आ गई और टाइम है ही नहीं यार. वी गोइंग हार्ड दीस डेज ताकि ईद पे कुछ टाइम ऑफ मिल जाए यार. जॉर्ज लिंडा वैसे तो अच्छी पिक है, पेशावर को सूट नहीं करती उतनी. Is that fair? They've got 4 spinners now. They've overloaded their team with spinners. Sufyan Yakubi Dooby-Doo, Sufyan Muqi, Sufi Mac, Mehran Mumtaz and George Linda. So अब इसके अंदर Sufi Mac is a starter. Arif Yaqub या Yakubi Dooby-Doo is अच्छा कर रहा है आरिफ. खेल अच्छा रहा है, but he's probably backup for Sufi Mac. He's doing exceptionally well. Because they're both wrist spinners. एक लेफ्ट आर्म एक राइट आर्म. हाँ, है तो डिफरेंट. दोनों भी खेल सकते हैं. मगर यार पेशावर अपनी होम गेम्स पिंडी में खेलता है. पिंडी बाबाजी पिंडी शेर. वहीं तक रोक देना चाहिए था तुम्हें. मुझे वो रुका नहीं जाता मुझसे. क्या नाम था इस बॉय का? मुझे पसंद है वो रैपर. तुम्हें नाम याद है? मुझे नाम नहीं है. हसन नवाज तो नहीं था इसका नाम? नवाज ऐसा ही कुछ नाम था यार. अच्छा, एक और उन्होंने पिक किया ना पेशावर ने सप्लीमेंट्री में. यस, मिचेल ओवन, द स्टार ऑफ द बिग बैश लीग. किधर खिलाएंगे पता नहीं. वो ओपन कर रहा था किसके लिए? होबार्ट के लिए. होबार्ट हरिकेन्स के लिए. वन द बिग बैश लीग. 100 मारा है. 100 मारे. या बहुत ही तेज तरीन 100 मारा है इसने फाइनल में. एंड मिचेल ओवन अनाउंस्ड हिमसेल्फ आल्सो. द ग्रेट बिट अबाउट दैट स्टोरी वाज दैट ही वाज अ होबार्ट हरिकेन्स फैन एज अ किड. और उसकी तस्वीरें हैं स्टैंड्स में. और अब उसने फाइनल जिता दिया उनको 100 शतक जड़ के. तेज तरीन. आई लाइक मिचेल ओवन. साइम अयूब, बाबर आजम, मिचेल ओवन, मोहम्मद हारिस. How do you fit those guys? हारिस को प्रेफरेंशियल ट्राई करो, उसको तो वहां से निकालो ना. हाँ, पता है, maybe that is the best career move for Haris going forward, क्योंकि साइम जब वापस आएगा तो he will slot into Pakistan's team as opener. साइम अयूब, मिचेल ओवन up top, बाबर फर्स्ट ड्रॉप, हारिस. बाबर वर्सेस स्पिन then? ये मसले हैं ना. चलो वो तब की तब देखी जाएगी. लेकिन मिचेल ओवन is a good pick. Peshawar have gone a bit top heavy. They've overloaded their team with spinners and top order batters, and I don't think that kind of works. But I like Mitchell Owen, so I really hope that he can light up the stadia in PSL. Yeah, मजा आएगा. अच्छा, लास्ट टीम, क्योंकि बाकी 2 टीमों ने कोई चेंजेस नहीं है उसमें. Last Christmas I gave you my heart. कराची किंग्स. हम ही तो हैं कराची के. विलियमसन has not done anything. He's partially unavailable. और वो कर ले जितनी कमेंट्री करनी है उसने, ठीक है. partially unavailable. खेलेगा वो. जा केन जी ले अपनी जिंदगी. उसके अलावा शान मसूद, the UNICEF चैंपियन. यासर शान मसूद वी चैंपियन. He has been let go. No, he hasn't from been let the captaincy. go. Yeah, Shan Masood is still part of Karachi I squad. know, captaincy नहीं कर रहा यार. और पता है, it kind of makes sense. अब वो आपकी अलग discussion है. The discourse that whether David Warner should be captain or not is separate. Davy Warner. But when you've got a potential top 3 of Davy Warner, Tim Seifert and James Vince, तो इसमें तो यार मुश्किल ही शान मसूद की जगह बने. Let's be real. इसमें तो केन विलियमसन की भी जगह नहीं बन रही. वो partially available होकर भी शायद बेंच ही वार्म करे. शायद उसको खिला दे for brand value. Warner and Williamson batting together. Yeah, back to the Sunrisers Hyderabad days. थोड़ी सी तस्वीरें खींच. जीते हुए हैं ना 7 IPL. So, you know, ठीक है, maybe a decade late, but आ गए PSL में. Decade too late. Yeah. Look, Davy Warner. Decade ही तो हुआ है. चलो 5 years too. Davy Warner, if I'm not wrong, is captaining his side in the Big Bash League as well. ठीक है, and he has captained the Sunrisers Hyderabad to an IPL title. And Davy Warner liked his time or enjoyed his time in Pakistan when he came in 2022. So, एक ये मसला जरूर है कि क्या वो अपनी बातें समझा सकेगा टीम को पूरी तरीके से. But that's where Haider bhai steps in. And Haider Azhar is a very intelligent human being. I expect him to work this out. I expect Karachi Kings to make the playoffs this year.
अब यार वो बात की बातें अभी क्यों बता रहे हो? बट पता है आई एम फॉर द डेवी वार्नर असाइनमेंट नहीं, अपॉइंटमेंट एज कैप्टन. मुझे सिर्फ एक मसला है कि अगर वार्नर की फॉर्म में लगी. नहीं, PSL बहुत छोटा टूर्नामेंट होता है, ठीक है, और इतने पहले प्लेयर्स आते भी नहीं है. लास्ट वीक में कैंप लग रहा होता है. विल ही बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या प्लेयर्स जो हैं वो उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है? ऑन द फ्लिप साइड, हैदर अजहर ऑब्वियसली वो ब्रिज गैप करेगा, लेकिन इट्स स्टिल अ ब्रिज. On the flip side, I understand what you're saying, and it's a valid point. But franchise T20 cricket दुनिया में हर जगह हो रही है, and you have very little time to prepare. IPL के लिए तो होता है IPL को साइड पे कर दे यार, मैं बाकियों की बात कर. पाकिस्तान नहीं और कहाँ खेलते हैं हाँ आजकल उस तरह उसको शायद मसला है खैर ना. मे बी डेविड वार्नर इज ऑन टॉप ऑफ थिंग्स एंड ही इज ऑलरेडी इन कन्वर्सेशन और वो पूछ रहे हैं कि कौन सा प्लेयर क्या करता है. Maybe मैं एक क्वेश्चन Perhaps we don't know. अब तो इसके लिए तो हैदर भाई को बुलाना पड़ेगा. मगर देखो कुछ सोच समझ कर ही इन लोगों ने किया, एंड आई ट्रस्ट कराची किंग्स की मैनेजमेंट. इज फिल सिमंस द कोच? नहीं, नॉट एनीमोर. He's gone. बांग्लादेश का है वो. So who is the coach now? अभी नहीं पता, अभी पता ही नहीं हमें. मुझे नहीं पता. So they're still identifying a coach, eh? So That's going to be a tough task with the IPL going on. So वो फिल सिमंस बांग्लादेश का 2027 तक उन्होंने साइन कर वो देखो फिर वो समझ गए इस चीज को. खैर कुछ कह नहीं सकते, कोई पता नहीं. कल बांग्लादेश भी फिल सिमंस भी सैक हुआ पड़ा. हाँ, सिमिलर. इसाम भाई ने जो बातें बताई थी उनका भी यही हाल है कि कोई पता नहीं है. 2027 तक मुश्किल ही लास्ट बाय द वे बांग्लादेश के जो 2 प्लेयर्स हैं, रिशाद हुसैन एंड लितौन, उनको पूरे एनओसीज मिल गए, और That's good stuff. नाहिद राना को पार्शियल मिला. वो पार्शियली अवेलेबल है, एंड दैट्स आल्सो अनदर ब्लो टू पेशावर ज़ल्मी. आल्सो बांग्लादेश की बात हो रही है तो यार तमीम इकबाल, he suffered a heart attack whilst playing a game in the Dhaka Premier League. So our best wishes to Tamim Iqbal yaar. Hopefully he recovers very swiftly. Personally, my favorite character in Bangladesh and their best opener. Best opener ever. अवे रिकॉर्ड भी अच्छा था टेस्ट क्रिकेट में. नहीं, he was really good. लॉर्ड्स में सेंचुरी मारी थी. लव माई सेल्फ तमीम इकबाल. थोड़ा झटका लगा था मैं सुन के, बट इसाम भाई का ट्वीट देखा मैंने. हाँ, मैंने भी. इसाम भाई confirmed that things are under control. So credit to the doctors, man. Apparently it was a touch and go situation, and we're glad that you've saved Tamim Iqbal for us. So get well soon, Tamim. ठीक है. यही है बात करने. हाँ, बात तो यही है. Just on the Karachi Kings thing. Now that we've mentioned how Davy Warner, Tim Seifert and James Vince will probably be or should be their top 3. यार does Shan Masood or Kane Williamson even get a game? Kane Williamson does get a game obviously. शान मसूद का मैं कुछ कह नहीं सकता. 4 पे तो नहीं खेलना बनता. 4 पे शायद खिला ले उसे. फर्स्ट ड्रॉप से नीचे नहीं खेल सकता शान मसूद. और है कौन? हालांकि he would argue otherwise because he was Pakistan's number 4 in the T20 World Cup in 2022 and Pakistan's top scorer in that tournament. मैं मजे की बात बताऊं, शायद इनके पास वो नंबर 4 वाला प्लेयर भी नहीं है. उमैर बिन यूसुफ है और शान मसूद. यार फिर तो उमैर भी नहीं फिट हो रहा सादी, क्योंकि खुशदिल शाह है, इरफान न्याजी है, ये दोनों तो 4 पे नहीं आ सकते. लिटॉन है, लेकिन फिर आप एडम मिलने को खिलाना चाह रहे हो एज योर 4th ओवरसीज, क्योंकि यू ऑलरेडी गॉट विंसेंट वार्नर. नबी है. नहीं, नबी नहीं खेलेगा. और कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं? लिटॉन, नबी, दैट्स इट. विलियमसन, दैट्स इट. yes. They have no bowlers. Adam Mill. So yeah, you probably want to play Adam Mill, right? और इन्हें उठाया भी जल्दी था. If I remember, he's platinum. तो Mill, Warner और यार ये बातें तब करेंगे ना, अभी क्या करें? हाँ, Warner और Vince खेलेंगे. Warner, Seifert, Vince and Mill. Yes, there you go. Solved. मुश्किल है शायद शान मसूद को स्लॉट इन करना, but लेकिन कौन? I suppose one of Shan Masood or Umair bin Yusuf will have to bat at 4, which is not ideal. But चलो, like Saad said, तब की तब बातें करेंगे. But I'm excited to see Davy Warner captain the Karachi Kings. आप भी बताओ हमें how you feel about that. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दे, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम, और मुझे हर जगह फॉलो कर दे. उसके अलावा हमारी बूथियां पसंद आई हो तो Spotify और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं. हमारी जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू Patreon, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. उसके अलावा इजी पैसा है 0319360255 इज द नंबर. आप लोगों से एक अभी IPL की वीडियो आएगी. ड्राफ्ट किया हमने IPL का, दे दिया तुमने स्पॉइलर ही. तो एंड पे दिया, अब कल आ जाएगी ना. और कंसिस्टेंट कंटेंट अभी आपको इन दिनों में मिलता रहेगा. बस ईद डेज में ना एक ही वीडियो आएगी. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो पहला ओडीआई है ना, वो दूसरा ओडीआई उसका रिव्यू होगा. बाकी यार रिमूव साद नासिर एंड बहराम काजी फ्यूड फ्रॉम योर बिंगो कार्ड्स, प्रो स्पोर्ट्स बिंगो कार्ड्स. नहीं डालो. वो तो कह रहा था, अमार जहीर कहता कि ही हैज हिज मनी ऑन के साद ने चंड रखते नहीं बहराम को. नहीं, चंड मैं नहीं रखूंगा, मैं घूसा मारूंगा. You know what's funny though? सारे बहराम हेटर्स जो है ना, वो और आ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली साद चैंपियन मिला हुआ है उनको. तो ठीक है, साद आर्मी, कीप दैट गोइंग. वी एक्चुअली एंजॉय द बैंटर. शुक्र है. अल्लाह हाफिज़.